I seek refuge in Allah from devil the outcast, in the name of Allah the most beneficent and the most merciful. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Advertise upon you the blessings of thy Lord. My very dear colleagues, respectable principals, our fellows from the Kifayat Sons and Pearson. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I welcome you all and I thank you all for joining us today for this consultative meeting of IA Schools principals. It's a short, smart meeting. And for those who are new, for them, this is Kashif Suhail. I'm Dr. Kashif Suhail, looking after the academic affairs and matters of the IA schools. And today's meeting especially focuses on the two important aspects. उनमें हमारे एजेंडा भी बहुत स्मार्ट सा है, कुरानिक करिकुलम एंड इस्लामिक स्टडीज की बुक्स एंड पेपर्स, और साइंस जो है, because we received lots of feedback and inquiries and questions about these two issues after the papers of the first term and even during and before the papers also. And for science books, we are receiving feedback for the last 1.5 years. So, especially about the cover and the designing of the papers and all that stuff. तो मैं ideally I would like कि हम जैसा कि पहले मैंने mention किया, हमारे साथ चूंकि किफ़ायत publisher से बैठे हुए academic coordinator, so we'll take the second point, agenda point as first. और हमारे साथ Miss Asha हैं from the Mirpur campus. I would like her to begin with what she feels is the challenge and her apprehensions about the science books. तो फिर हम इंशाल्लाह उसके बाद बाकी जो प्रिंसिपल्स मुझे अपनी फीडबैक देते रहे हैं यहाँ पे लाइव भी डिस्कस कर लें, एंड वी हैव टू रीच टू सम इफेक्टिव डिसीजन एंड कंक्लूसिव प्रोसेस के जिसमें हम इसको ज़रा बेहतर कर सकें. तो let's begin with Miss Aisha Imran from Mirpur to begin with her feedback. आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, गालिबन आपका माइक शायद सेट हो रहा है या जी. मिस आयशा, आपको हमारी आवाज आ रही है? जाहिर है आपकी आवाज हमें नहीं पहुंचेगी. चैट बॉक्स में यू हैव टू इन्फॉर्म अस. शी इज विद अस. अच्छा, आप पहले ही रिस्पॉन्ड कर रही हैं चैट बॉक्स में, लेकिन आपकी आवाज समहाउ. अच्छा, आप में से कोई और जरा बात करें ताकि मुझे अंदाजा हो जाए कि. अस्सलाम वालेकुम काशिफ, आपकी आवाज बहुत लो आ रही है. अच्छा, ओके. गिव मी अ मिनट, आई होप इट विल इम्प्रूव नाउ. एक मिनट दीजिए. आप जरा Actually, I can hear Mr. Kashif very clearly. अच्छा, मेरा ख्याल है the reason is the problem is at probably at the end of some of you because of internet connectivity. या अपना वॉल्यूम जरा इंक्रीज कर लीजिए, बाजुकात आपके हो सकता है स्पीकर्स का वॉल्यूम जो है वो लो है. जी, हाँ जी, मुझे ये चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स आ रहा है कि उन्हें आवाज आ रही है. अच्छा, जब तक मिस आयशा इमरान इसको शी वर्क्स ऑन हर ऑडियो, आपका जो भी इशू है आप उसको देख लीजिए. सो लेट्स गो टू. अगर आप हमारे साथ हैं, मिसेस मुसर्रत भी हैं, कंवल मलिक हैं, और हमारे साथ सिद्रा भी हैं, मिसेस सिद्रा फ्रॉम दी. तो आप में से कोई बात शुरू करना चाहे तो प्लीज जरा आप शुरू कीजिए. अस्सलाम वालेकुम सर काशिफ. वालेकुम अस्सलाम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी सर, कैन यू हियर मी? यस वी कैन हियर यू. प्लीज आप शुरू कीजिए. So how you are going to do? Either I should continue or after her?
नहीं, आप जारी रखिए प्लीज। आपका जाहिर है माइक पहले बड़ी मुश्किल से कनेक्ट हुआ है, तो एज लॉन्ग एज इट गोज गुड आप बात कीजिए, That's फिर fine. हम Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair, sir, for considering our concerns. Regarding science books, from last, I think, 2 years, we are just focusing the studies on these books now. So, our concern was that no matter, the books are excellent, covering all the points or the topics from biology, physics, and chemistry. These are very effective books as well, we must say. But जो हमें प्रॉब्लम यहाँ पे फील हुई, जो हमने फेस की, was the content was too much lengthy. और उसमें ये चीज़ थी कि अल्टीमेटली जाहिर बात है कि इन अ क्लास व्हेन वी आर गोइंग टू कंसीडर द होल क्लास स्टूडेंट्स, और व्हेन वी आर कंसीडरिंग द एग्जामिनेशन टाइम, उस टाइम पे हमें जब बच्चों को लर्निंग का टाइम आता था तो ये ओवरबर्डन वर्क था उनके लिए. लाइक इन द लास्ट ईयर जब एग्जामिनेशन में हमने काउंट किए तो देयर वर अबाउट 75 to 80 क्वेश्चन आंसर्स, एंड स्टूडेंट्स हैव टू लर्न इन हाफ डे. नो मैटर, वी वर वर्किंग ऑन द कॉन्सेप्ट्स एज वेल. बच्चों का सारा काम साथ साथ चल रहा होता है, लेकिन अल्टीमेटली एग्जामिनेशन के टाइम पे उनको लर्निंग बहरहाल करनी ही होती थी. That's why we reviewed the books in detail, or what comes in our जो एक हमारा conclusive part था, उसमें ये चीज़ आई कि we can divide the lessons, the unit names, and the unit topics in the theory-based working, some of the worksheets, and some of the quizzes, and that's how we can plan for the coming term. तो इस पे हमने थोड़ी प्रॉपरली हमने इसका एक ब्रेकअप भी रेडी किया, एक स्कीम ऑफ स्टडी भी हमने रेडी किया. इंशाल्लाह वी विल शेयर दैट विद द होल कैंपसेस एज वेल. तो अभी हमारा यही था कि इफ वी अगर सबने बुक्स इस वक्त ओपन है तो इनका जो कंटेंट्स का पेज है, बुक 1 अगर हम साइंस ग्रेड 6 साइंस को अगर हम देखते हैं, और कंटेंट बुक्स में अगर कंटेंट्स वाले पार्ट में अगर इन द फाइनल टर्म वी आर हैविंग फ्रॉम चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 में भी आप ये देखेंगे दे आर टोटल 2.1 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 टॉपिक्स आर देयर. इसमें अगर हम टॉपिक नंबर 2.2 बी पे जाएं, दैट इज साइंटिफिक क्वेश्चंस, जो कि हमारा वर्किंग पार्ट हमारा बन सकता है. वी कैन गो विद द प्रैक्टिकल फॉर दैट टॉपिक्स ना. इसी तरह हर जो हमारे मेन टॉपिक्स हैं उनके सब टॉपिक्स में जो हमारे ये वर्किंग स्कीम है या हमारे ये वाले जो टॉपिक्स हैं, वी कैन कीप देम एज प्रैक्टिकल्स. एंड अगेन फॉर द स्टेम, the STEM part can be like the assignments, or we can consider as the practical work for those. इससे at least हमारे 2 topics हमारे less हो जाते हैं from each main topic. जो टोटल हमने ये वर्किंग की, क्योंकि बुक्स का जो सारा जो हमारे बुक्स का पैटर्न है दैट इज सेम. तो on the whole when we worked on that, तो we concluded के टोटल हमारे 12 प्रैक्टिकल्स इस तरह बन सकते हैं. 12 इट मीन्स कि 12 हमारे जो टॉपिक्स हैं वो हमारे लेस हो जाते हैं, और हमारा जो थ्योरी वाला वर्क है वो जरा थोड़ा सा हमारा लेस हो सकता है, और हम प्रैक्टिकल को स्विच ओवर कर सकते हैं. अगेन ड्यूरिंग इन अ वीक देयर आर 5 पीरियड्स इन अ वीक. वी कैन कंसिडर कीप 1 पीरियड एज प्रैक्टिकल एंड 4 फॉर द थ्योरी. हम इस स्कीम के साथ भी हम लेके चल सकते हैं. एंड अगेन हमारे पास है हर यूनिट के एंड में वी आर हैविंग द क्विजेस एज वेल ना. वी कैन यूज दोस क्विज पेजेस एज द MCQs फॉर गेटिंग रेडी फॉर द एग्जामिनेशंस एज वेल ना. जैसे बच्चों के पास भी क्योंकि काफी उस पे कंटेंट है, जो क्विजेस वाले पेजेस हैं ऑलमोस्ट में सारा एक जो टॉपिक का एक जो कॉन्सेप्ट का जितना भी you can say the summary is over there. So during the examinations, the students can get ready their MCQs from those quizzes pages as well. We can take the quizzes as well, and we can keep them as MCQs as well. So these were some of our working for these science books.
Jazakallah, sir. अच्छा एक नाउ आई थिंक द प्रॉब्लम स्टिल रिमेन्स देयर, अगर आप वो उसको प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करते हैं और वो उसको फिर आप एक पीरियड भी एलोकेट करते हैं। एनीवेज आई थिंक मिस आयशा हैज गिवन अस अ गुड आइडिया, प्रॉब्लम भी बताई और थोड़ा सा सोल्यूशन जो इनोवेटिवली शी इज थिंकिंग ऑन इट। चूंकि आज सब प्रिंसिपल्स बैठे हुए हैं, वो अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर लें और फिर हमारे पास किफ़ायत वालों की टीम भी मौजूद है, तो वी हैव टू कलेक्टिवली कम अप विद सम इनोवेटिव सोल्यूशन। तो ये भी अच्छा है, आप लोग अगर अपने नोट्स लेते रहें तो इट विल बी नाइस टू हैव कंसेंसस टुवर्ड्स द एंड कि हाउ आर वी गोइंग टू हैंडल इट। Yeah, तो fine. मैं मिस सना आपको चांस देता हूँ, लेकिन अगर इफ इफ वी कुड हैव मिस मलिक फर्स्ट, उन्होंने उस वक्त बात शुरू करनी थी, तो Sure, sir, कमल sure. जी। Assalamu alaikum warahmatullah, sir. जी वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। Sir, talking about the books are very nice. They cover, like, I was talking to my SSC staff about these, and they were saying that all the topics that are coming into the books later on at the FPIS, like SSC stage, they are all well covered here. The only thing is, Is this as a compliment for the books or is this really a yes, it is. problem? Consider it as a compliment, please. ओके अच्छा ठीक है, Yes. क्योंकि Um, मैं तो डर गया ना कि 6, 7, 8 पे ही हम कहीं एफएससी का सिलेबस तो नहीं पढ़ा रहे। वैसे नहीं। वैसे कुछ लेकिन सर टीचर्स का आपके ख्याल नहीं किया। आपके इंफॉर्मेशन के लिए एक चीज शेयर करना चाहूंगी कि व्हाट हैज बीन डन विद आवर स्टूडेंट्स एट ग्रेड 9th is that 5 chapters from first year chemistry have been added to grade 9th, altogether making it 17 units of chemistry in grade जी आई 9th केम only, जी which is a lot. Which is a lot. Yeah. So Yes. these books are good, but what we did was we had the practice worksheets of like SLOs based PBA sheets we made, and we had the same in the first term at the in the exams. Practicals were also performed, but instead of asking the children to perform the practical with the exam, we introduced the PBA here, and PBA was effective. So one PBA can be added where these STEM activities are coming or where our children are performing some hands-on activities. But talking about the content and material, yes, it is a lot, and we need to talk about this. And training is mandatory. Our teachers should be equipped with the the innovative ideas. I would like to suggest my biology teacher is using some online resource, simulation kind of software she's using. I will definitely like to share that also. But the similar, I went to another workshop. They also guided about some free resource, or maybe if the publication has some resource made already, they should also provide us with that, where the teachers could teach easily through the simulation based softwares. They are very nice, and the students can get the idea of the concepts of these technical topics very well. Okay. जी thank you Mrs. Malik. Let's have Miss Sana Atiq from IA Schools Gulzar Kayat. Assalamu alaikum, everyone. Walaikum assalam. Sir Kashif, I'm truly agreeing with two of my colleagues, whatever they have discussed here. And being an educationist, definitely they are giving the solution of the problems we are facing in science also. But the first thing is that that's definitely being an educationist, we are having a lots of solution and we are practicing these from last 2 years, that we are dealing with the concept with various worksheets, quizzes, practicals, and other lots of solution of the problem. But the problem still exist over there. So that problem should be definitely sorted out by the persons who have published it out and producing us the books. Okay. So let me list down the few problems that we are facing, and definitely later on our solutions should be recommended to them, and they will recommend at certain other solution to follow up or keep this book in our book list. Okay. The very first thing is that whatever the material and content, I truly agree. Being a person who want to learn science, the content is very much knowledgeable, very excellent to clear the concept. But we must remember one thing, that we are teaching this content to the level of grade 6, 7, and 8 students. Our level of understanding and the level of students are totally different.
ठीक है? So we must Agreed. think about that the student who is coming from grade 5, he is dealing with these concepts in grade 6, ठीक है? And 7 and 8 later on, definitely. So the units they have include, they are having lots of subunits division, and it's very much difficult to cover these in each term as per the study period allocation we are having of science. Okay, we are having just 5 periods in a week. Now when we look into the subunits and each thing, I must conclude this thing that the topics whatever they are providing in each unit, like it's like 7 to 8 subunits, the topics were good but they are non-systematic. Okay, the representation of topic in each unit is non-systematic. What if I'll take an example of only one, a random example of this is the book of grade 6, first unit, cells, tissues, organ and system. Okay, so it covers like each and every aspect of this topic, that is cell, tissues and organs. But I believe every topic is having 2 or 3 pages, which is having ample 7 to 8 questions. Word a question bank over there on each page. Now, what if being a biologist, if I see the topic is like that, they have to cover cell, organs, and tissues together. Okay? And they can be able to relate topic. First unit like is doctor past and present, medical doctor STEM topic, and last topic transplant. They have to explain it into the end. Instead, they are giving it like subunit separately. Okay, means you get the basic topic is cell, tissues and organs. So they have to clarify this content, especially at grade 6 level. They have to clarify this concept, like what is cell, tissue and organ, and later on they have to relate it like what doctors are doing, what are the medical doctors STEM activities were going on, and at the end they are discussing about various diseases and transplants. So this is how the content is non-systematic, and this is happening, we are observing in every unit. Okay, second point of this is that definitely when we'll go through this as per our 5 periods in a week, the syllabus is too much lengthy to cover with such much question bank, and in what if we summarize it, in spite of that to add worksheets, quizzes and practical, it becomes so lengthy to cover in that specified period. Third point which I want to raise is that what if as per my level, I don't know about other campuses, but there is no such teaching guide is available on websites and certain other places where we can use and guide our teachers accordingly. So no such teaching guide I found on the website even. Okay? Thirdly, last thing is that definitely we being a principals teaching or training our science teachers accordingly, because we have to cover the syllabus, we have to clear the concept, and we have to conduct the paper. But the training from their side who are publishing this book, it's our crucial requirement that they have provided our teachers a training so that they are able to complete accordingly. What definitely when they publish it, when they have written this book, they have certain idea how to cope with a specified time period of 1 year or annual year. So they have to provide us a specific training of our teachers, which I believe is a crucial requirement of us to complete or to follow up the book accordingly. I hope everything is clear. I'm taking notes also, please. Okay, so same is the concepts like physics and chemistry topics are going on. Definitely because this book is covering both the 3 subjects which will follow in grade 9th and 10th and first year, second year, physics, chemistry and biology. So there are certain topics of physics also which are very much difficult to understand, specifically at the level of grade 6. So we must consider the arrangements of certain topics in these books so that the effectiveness of the book will be enhanced accordingly. Thank you so much, sir. Ji, thank you very much. ठीक है जी. I think you have come up very good and very concrete feedback on the various aspects of these books. मेरा ख्याल है एक चीज, चलें, let's have a couple more comments and then I would be in a better position to conclude this point. कि ये जो इसका जो कॉम्प्रीहेंशन लेवल है उसके ऊपर और इसकी लेंथ के ऊपर जो है ना, आई एम श्योर कि जो एप्रीहेंशन है आप लोगों की. अच्छा जी, नेक्स्ट
जी, मिस मुसर्रत या सिद्रा में से कोई बात करना चाह रहा था, कीजिए। Assalamu alaikum, everyone. Hope वालेकुम you are अस्सलाम। fine. Actually, we are talking about this science subject, and as my colleagues have raised few of the points, I would like to discuss about that. First of all, the point which was raised that the quizzes are given at the end of each chapter, and we can use them as multiple choice questions. So I don't think that we should confine our students or the teachers to only those pages that they should just do the cramming and then reproduce it during their assessments or the exams. So I think that the whole of the chapter should be explained well, the concepts should be cleared, and then the students should be able to answer the questions, or they should be they should be able to do those MCQs, whatever is given from anywhere from the subject. I hope you are listening. Can you hear me? जी, we can hear you. Please Yes, continue. yes. Okay. Then the second thing is that I also believe that experiments are very necessary, and the STEM and the activities, all of these are necessary, and these are all already given. These are already given the curriculum and the breakups, and we have been following that, alhamdulillah. Then there is another point that the syllabus is very much. That is also true that there is a lengthy syllabus, but if we just go through the books, we will see that there are some topics and some concepts which are repeated. The same topic is in biology, physics, and chemistry. So we should not waste our time on again explaining those concepts. Rather, we should just revise the concept, and then we should go further. So in this way, we can just create some of our extra time also, where we can reinforce and do any practical work. The training is a must. That is also true, that training from the Kifayat publishers or whoever can give a good training to our teachers, that is a must, because learning never ends. So these are the points from my side. And the other thing which my colleague has just said, that in grade 6, there are few of the concepts of physics which are difficult. I don't think so. They are not difficult at all. Only it is a matter of the methodology and the way the teacher is telling them. MashaAllah, our students are good. Okay. And this is their learning age. So they can learn Right. it. And physics is, the interesting subject. Thank you. Okay. Great. Well, it's good. I think it's very nice to see a very diverse feedback coming up. चूंकि मुझे बहुत ज्यादा अब आई थिंक वी नीड टू ऑल्सो, शायद पहले मेरा ख्याल यही था कि इस्लामाबाद से में एक डिफरेंट लेवल है और बाकी शहरों से डिफरेंट फीडबैक आ रही है, ये रीज़न होगी। लेकिन चूंकि मिस सना की फीडबैक जो है ना, दिस वाज क्वाइट एन आई ओपनिंग एस्पेक्ट ऑफ दिस फीडबैक फॉर मी, कि जाहिर है वो भी इस्लामाबाद में है और उनके बच्चे भी इसी सैंपल से आ रहे हैं, और वहाँ भी ये प्रॉब्लम फेस की जा रही है, लेंथ एंड कॉम्प्रिहेंशन का जो लेवल है। तो चलें, डॉक्टर माजिदा प्रॉबली रेज्ड हैंड, फिर उनकी लेते हैं, और मिस वर्दा भी हैं हमारे साथ, उनकी भी राय लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आई होप यू कैन हियर मी। जी आई कैन। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कोशिश करें कि उन पॉइंट्स को जरा कम वो रिपीट करें जो पहले कवर हो गए हैं, और थोड़ा सा ब्रीफ कर लें ताकि हम इसको जल्दी कर सकें। जी बस भाई मुझे सर एक छोटी सी चीज शेयर करनी है कि द वे साइंस करिकुलम एंड द रेस्ट ऑफ द करिकुलम्स आर डिजाइंड फ्रॉम ग्रेड अर्ली ईयर्स टिल ग्रेड 5, 6, 7, 8 में हमें करिकुलम डेवलपमेंट की जरूरत है, बिकॉज देयर आर सर्टेन टॉपिक्स। साइंस एक ऐसी चीज है जो कॉन्टिन्यूएशन है, यानी अगर आप ए लेवल्स का देखें ना, ATP या मैट्रिक का देखें, तो इसमें जो अल्टरनेटिव प्रैक्टिकल मेजरमेंट्स कराते हैं या जो कुछ भी कराते हैं, उसकी बेसिक सारी प्राइमरी से स्टार्ट होती हैं, 6, 7 से स्टार्ट होती हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ रेपिटेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, उन्हीं की एक्सटेंशन चल रही होती है नीचे से ऊपर तक। तो 5 तक तो हमने साइंस को बहुत अच्छे तरीके से लेके चलते हैं, बट 6, 7, 8 में
हमारा प्रॉपर करिकुलम डेवलप नहीं हुआ हुआ. सो आई थिंक कुछ का ख्याल होगा चीज़ आसान है, कुछ का है मुश्किल है, लेकिन ऑल दोज टॉपिक्स आर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो बुक डिज़ाइन हुई हुई है इट इज़ अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ मैट्रिक एंड एफएससी के. वहाँ पे हमें जितनी रिक्वायरमेंट है उस लिहाज से ये बने हुए हैं टॉपिक्स. तो अगर हम करिकुलम अच्छा सा डेवलप कर लेना सर, कोई सैटरडे ऐसे रखेंगे जिसमें आप साइंस टीचर्स को बुला लें फ्रॉम डिफरेंट एरियाज, और वो जो है अपने अपने फीडबैक दें, बुक्स को सामने रखें, और फिर हम एक डायरेक्शन ले लें कि ओके ये टॉपिक्स, ये सब टॉपिक्स, एंड देन वी विल राइट डाउन द मेथोडोलॉजी ऑल्सो एग्जैक्टली कि क्या क्वेश्चंस पूछने चाहिए, इसका एमसीक्यू कैसा हो, ताकि एक डायरेक्शन, जैसे हमारा कैम्ब्रिज में होता है, जितने मर्जी स्कूल्स हो, जितनी मर्जी ब्रांचेस हो, मेथोडोलॉजी सेम चलती है. क्यों? बिकॉज दे प्रोवाइड resources also to all the branches, and how to teach those resources, how much time is required, कितनी वर्कशीट होंगी, कितना रिटन वर्क होगा, क्लास वर्क, होमवर्क, प्रोजेक्ट, एवरीथिंग इज डिसाइडेड. कितने प्रैक्टिकल्स हम करेंगे वो सब साइंस टीचर्स अच्छे वाले 5-6 बैठ के आपके इधर हेड ऑफिस में प्रॉपर करिकुलम डेवलप करेंगे. सॉरी टू कट यू डॉक्टर साहब, आई होप आपने इसके देखे हैं, इसके पहले से बने हुए हैं जो ब्रेकअप्स हैं, और बने हुए हैं. इसकी हाँ जी, लेकिन वो चेंज हो जाते हैं ना टॉपिक्स वगैरह, तो उसमें जिस तरह से 5-4 के डिजाइन हुए हैं कि क्वेश्चन भी बताया हुआ अच्छा है वो हाँ जी, ठीक है ठीक है. दे आर इन डिटेल. तो उस तरह का हाँ ये हमें डेवलप करने की जरूरत है कि टीचर्स को ये भी पता हो, हम एंटर होंगे तो इंट्रोड्यूस कैसे कराएंगे उसको, हम उसकी को एक्सटेंड कैसे करेंगे, प्रैक्टिकल क्या कराएंगे, एक्टिविटी बच्चों की तरह जैसे पढ़ाते हैं ना 6, 7, 8 का भी हमारा उस तरह का ही डिजाइन होना चाहिए. एंड ऑल द ठीक गुड होगी टीचर्स who have जी. you know experience वो इसको डिजाइन कर दे एक दफा once for all, ताकि वो ट्रेनिंग और वो सब कुछ भी खत्म हो जाए, आसान हो जाए पढ़ाना. परफेक्ट. अच्छा पॉइंट इज टेकन. अच्छा मैं ये भी बताता चलूं, वैसे हमने इसकी जो टीचर गाइड्स हैं वो भी हमारे जो एकेडमिक रिसोर्स बैंक में अब अपग्रेडेड हैं. बहरहाल लेट्स लेट्स इसका मतलब है कि इन रिसोर्सेज के बावजूद अगर इशू आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम कहीं और भी है. बट एनीवेज स्कीम ऑफ वर्क अभी सर, डेली जो या स्कीम ऑफ वर्क होती है अगर वो बन जाए तो वो जी जी आसान हो ठीक जाती है. ठीक है जी. नेक्स्ट आपके बाद मैंने किन से रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने बात करनी थी अभी, और फिर मिस सिद्रा बात करेंगी. जी, जो जरा बड़े कैंपसेस हैं जहाँ पे 6, 7, 8 में मल्टीपल टीचर्स पढ़ा रहे हैं. हाँ मिस वो थी मिस वर्दा गालिबन पेशावर से. इट्स अ ह्यूज कैंपस, मेरा ख्याल है उनकी फीडबैक विल बी रियली वैल्यूएबल, और इसी तरह मिस सिद्रा की भी. जी Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह. Sir, the thing is, these are the best books, as far as my opinion is concerned, which provide a marvelous base for both metric and Cambridge students. But the only thing we are facing is time constraint. I'm sure my colleagues, they would agree with me that I don't want my teachers to be worried about completion of course. They're enjoying their work, the books are best, but we in our school we have students from different backgrounds. We have Afghanis, we have some who are you can say with dual nationality, so sometimes they are struggling with the language as well. Secondly, time allocation, period allocation should be increased, and 1 or 2 lessons should be allocated to the practical work, the way it's done in O levels and A levels. We are doing it regularly. We have shifted towards multimedia presentations. We have shifted towards worksheets. We are asking students to go for the topics which are being repeated to prepare their presentations. But again, end of the day, the parents who are least bothered the whole term, they when the exams are approaching, they're focused on the syllabus, whether this thing is covered or not with proper question and answer. Though we have shifted towards SLO based learning in metric system in Cambridge, it's already there. But the thing is, these are the best books which provide base for everything, for all the systems. And the only thing required is we have to increase the number of classes per week. That's the only point. नहीं, वी आर ऑलरेडी गिविंग. आपको पता है पाकिस्तान स्टैंडर्ड में हम पहले ही 5 पीरियड दे रहे हैं टाइम एलोकेशन. इसका मतलब है इससे ज्यादा कोई स्कूल नहीं दे रहा. तो वो साइंस को जाहिर है अब ये तो नहीं कर सकते ना कि हम एक बुक को केटर करने के लिए अपना पूरा पीरियड एलोकेशन को डिस्टर्ब नहीं कर सकते. बहरहाल इस पर भी आई एम लीविंग इट ओपन फॉर दिस मोमेंट.
अगर बाकी जी लोग इस पर कंसेंसस करेंगे, बिकॉज यू नो वी हैव अदर सब्जेक्ट्स, तो अब या तो जी फिर जी स्कूल टाइमिंग बढ़ाई जा सकती है टू ऐड मोर जी पीरियड्स। तो जी बट आई एम टेकिंग योर पॉइंट, ठीक हो गया। ओके नेक्स्ट थैंक यू है सर जी, इसमें हमारे साथ हैं मिस सिद्रा, सईदा सिद्रा, अगर आप हमारे पास हैं साथ हैं तो बात कीजिए। बट इट्स गुड टू सी यू नो वेरी डाइवर्स फीडबैक कमिंग और डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हमारे पास आ रहे हैं। सो मे बी जहाँ पे ज़्यादा इशू फेस हो रहा है वहाँ पे आई थिंक यस टीचर्स रोल। आपका अनम्यूट नहीं, सारे अनम्यूट कर सकते हैं, आपका क्यों नहीं हो रहा? एक मिनट मुझे देखने दें। देखिए, आई हैव गिवन एवरीबडी राइट्स टू अनम्यूट योरसेल्फ। अब कीजिए, मैंने आपको इनवाइट भी भेजा है अनम्यूट का। मेरी तरफ से कोई चेक नहीं है आपके उस पर। नो। मिस सिद्रा, आप खुद से अनम्यूट कर सकती हैं, उनका मैसेज आ रहा है अनम्यूट करने का। ये देखें, ये खुद से ही कर रहे हैं सब लोग। आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन। आप, मेरा ख्याल है आप ऐसे करें, इतनी देर हम राशिद महमूद साहब से लेते हैं राय। आप एक दफा खुद को एक दफा दोबारा से साइन इन करके देखें इसमें, एंड देन यू कैन। ठीक है जी, राशिद साहब फरमाइए। अनम्यूट कीजिए हेलो। खुद को। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। ये मेरा ये क्वेश्चन है, मैं बुक्स मैंने देखी है और मैं आई बनीगाला कैंपस से बात कर रहा हूँ। तो जी, वहां पे मैंने बुक देखी है। बुक आपकी आवाज कट गई, किसी और को आ रही है इनकी आवाज? No, sir. मेरा ख्याल है ये ड्रॉप हो गए हैं, वो इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू होगा। जी, चलें, जब तक मिस सिद्रा वापस आती हैं, आप में से कोई और राय देना चाहता है? जो कैंपसेस मुझे पहले बताते रहे, प्लीज उनके लोग रिप्रेजेंटेटिव, हमारे पास ये साइंस की कमेटी के लोग भी बैठे होंगे जिन्होंने बुक डिजाइनिंग में हिस्सा लिया था, अगर वो बात करना चाहें तो इट विल बी नाइस टू हैव देयर। फालिया से हमारे पास मिस समिया है, आप अगर बात करना चाहें कि आपके वहां पे कैसा क्या चैलेंज है स्टूडेंट्स के लिए। जी, जफर अली साहब की आईडी पर आप बात करना चाहते हैं? अ, जी, उमैर साहब, मैं देख रहा हूँ आपका। मैं सिर्फ ये चाह रहा था कि कुछ एक दो हमारी और फीडबैक आ जाए, एंड देन आई विल रिक्वेस्ट यू टू स्पीक ऑन इट। अस्सलाम जी, वालेकुम काशिफ साहब, कैसे वालेकुम हैं आप? खैरियत अस्सलाम जी, वजाहत आपको। है? जी जी जी, गुड टू हैव जी, यू। मैंने मीटिंग इनवाइट देखा। थैंक यू वेरी मच। मीटिंग इनवाइट देखा। ऑफ कोर्स आई एम नॉट अ टेक्निकल पर्सन और a person who understands very much the curriculum or the books, but generally because of the importance of the subject itself, so I wanted to be part of the meeting. I joined. Think मेरा point जो है वो ये है, always the question I ask myself is that हमारे पास जो students हैं, how much of the Quran they understand after completing their studies in our school. अगर कोई बच्चा जो है वो 10 साल हमारे पास या उससे ज्यादा पढ़ के जाता है, तो क्या वो वाकई में कुरान को का फहम उसमें कितना है और वो कितना समझता है कुरान को? अच्छा That's वजाहत, always a, yeah. जस्ट गिव मी अ मिनट। एक्चुअली हमने थोड़ा सा चेंज किया था, बिकॉज वी हैव किफायत के नुमाइंदा भी हमारे साथ हैं, तो हम एजेंडा 2 जो है उसको पहले डिस्कस कर रहे हैं, साइंस को। तो अच्छा, sorry. I यू just यू हैव joined टू a bit later, so yeah. ठीक, होल्ड all इट right. फॉर अ मिनट, होल्ड इट फॉर अ मिनट, आई विल बी हैप्पी टू हियर यू। तो सिर्फ अभी हम इसके कंक्लूजन की तरफ बढ़े। सैरिश, आप बात Okay, करना sure. चाहती हैं फ्रॉम बनी गाला, तो प्लीज कीजिए। मैं एक दो और पॉइंट्स लेके देन आई विल रिक्वेस्ट। जी जी, अगर यहाँ सैयदा सिद्रा दोबारा में ज्वाइन कर चुकी हैं,
तो आप बात कीजिए। जी सैयदा सिद्रा, अभी भी नहीं हो रहा आपका अनम्यूट, देखिए। अच्छा, वो कह रहे हैं हमारे यहाँ भी थोड़ा इश्यू है, आपका भी अनम्यूट नहीं हो रहा, आप बात कीजिए। मानसेरा से अगर हमारे पास, क्योंकि मानसेरा अगेन इज अ बिग कैंपस, आई वुड लाइक समबडी टू शेयर द फीडबैक फ्रॉम मानसेरा एज वेल। जी, मानसेरा कैंपस से हमारे पास है कोई आज? जी, अभी भी म्यूटेड आ रहा है जी, आई डोंट नो देन। नहीं, मेरी साइड से बिल्कुल अनम्यूटेड है। जी, उस्मा सैयद आप मानसेरा से हैं, तो प्लीज ज्वाइन अस, आप अनम्यूट कीजिए, हमें बताइए साइंस बुक्स के हवाले से। जरा ये बाकी लोग चैट बॉक्स में बताएं ना इनको कि आपका खुद से अनम्यूट का, आई हैव गिवन राइट्स टू एवरीबॉडी, आई डोंट नो व्हाई इज इट नॉट वर्किंग फॉर यू। लेट मी ट्राई इट। जी, अब अनम्यूट कीजिए, अब अनम्यूट कीजिए। अच्छा, उस्मा भी कह रही है उनको भी इशू हो रहा है, आप अब अनम्यूट कीजिए खुद को। दिस कुड बी सम टेक्निकल। जी, अच्छा ठीक है, यहाँ पे राय आ रही है कुछ लोगों की। वो कह रहे हैं कि आई हैड द सेम कंसर्न्स व्हिच हैज बीन ऑलरेडी शेयर्ड एंड डिस्कस्ड बाय प्रिंसिपल सईदा। ओके, इट्स अपेयरिंग म्यूटेड। ओके, ऑल राइट, ठीक है जी। सो आई एम जस्ट ओपनिंग द फोरम फॉर, अगर कोई आप में से और बात करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए, फिर हम, मेरा ख्याल है हमारे पास उमैर या रेहान में से कोई हैं फ्रॉम द कफायत पब्लिशर्स, तो फिर हम उन्हें दावत देते हैं। सर वी आल्सो हैव द सेम इश्यूज एज अदर कोलीग्स हैव शेयर्ड, ठीक हो गया। ओके, अस्सलाम वालेकुम सर काशिफ। जी वालेकुम अस्सलाम जी, बात कीजिए। सर काशिफ, मैं IIU बानीगला कैंपस से बात कर रहा हूँ, कारी जफर। तो ये है कि मैं 6-7 की इस्लामियात पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट को। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि हर सब्जेक्ट के लिए ऐसा टीचर होना चाहिए कि उसको उस सब्जेक्ट पे मुकम्मल अबूर हासिल हो, ताकि जफर साहब प्लीज 1 मिनट होल्ड कीजिए, अभी हम इस्लामिक स्टडीज वाला थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, ये साइंस को कंक्लूड कर लें, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है जी। अच्छा, ये इसका भी हमें बता रही हैं मानसेरा में, वो भी कह रही हैं कि वी फेस द सेम इश्यूज। So generally, I think the issue of the length of the book and comprehension level of the topics is an issue. तो अब मैं I'll request किफायत पब्लिशर से जो हमारे साथ हैं वो इस पे 2 मिनट बात कर लें और फिर हम will then move towards. Excuse me, Kashif, can I say something? Yeah, sure, please. जी, I just want to give a suggestion. ये जो जिस तरह मेरी कुलीग ने पहले भी कहा है कि दिस STEM and the working scheme, working scientifically, that part of the chapter should be included in practical, and none of the questions should be given in the theory. Okay. So that when we will obviously the number of periods will be utilized for that, but at least the written work would be reduced. Okay. This is a suggestion. ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। So ठीक है जी। जी, अस्सलाम वालेकुम। May I start, Mr. Kashif? Yeah, please. Is this Umair? Yes, this is Umair. Thank you so Umair, much, please. and it is very heartening to hear the review from such a diverse background. And these books are being used in many cities, but IUI is probably the most diverse background institution which is using this book. We understand the book is lengthy and the comprehension level might be a little challenging. But the essence of the book is to help children think.
three things which will make a difference for any child who will graduate out of high school is his literacy skills, his mathematics skills, and his science thinking skills. इस किताब को लाने की वजह पाकिस्तान में हमारी यही थी कि एक ऐसी किताब दी जाए जिससे बच्चों को साइंटिफिकली सोचना सिखाया जाए, बिकॉज साइंस की नॉलेज की अब जो आगे फ्यूचर है वो ख़त्म होता जा रहा है। अब आपने देख लिया जैसे AI आ गया, चैट GPT आ गया, तो नॉलेज तो आपको इट्स ऑन योर फिंगर टिप्स, बट एनालिसिस, एक्सप्लोरिंग, रिसर्च, थिंकिंग, creativity, evaluation, that is where the game will be. अगर आप इस किताब को देखें तो ये एक स्प्रेड फॉर्मेट में डिज़ाइन हुई हुई है। जब आप स्टार्ट करते हैं एक पेज तो उसके अंदर थोड़ी सी कुछ कंटेंट आता है, उसके साथ 2 सवाल आते हैं। टीचर ने थोड़ा सा कंटेंट पढ़ाया बच्चे को, उसके साथ वो 2 सवाल डिस्कस करे। फिर टीचर अगले जगह गई, उसने वो डिस्कस करा, फिर वो 3 सवाल। इस तरह हर पेज पे 6 से 7 सवाल टीचर आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाती भी जाती है एक टॉपिक स्प्रेड फॉर्मेट में, और उसी के क्वेश्चंस भी डिस्कस करती जाती है साथ साथ। उसके एंड में हमने एक क्विज़ेस का सेक्शन दिया है। उसके अलावा काशिफ साहब, मैं जब लास्ट टाइम आपके पास आया था मैंने आपको एक फोल्डर दिया था रिसोर्सेज का, जिसके अंदर इसकी टीचिंग गाइड्स भी हैं, इसके साथ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी हैं, इसके साथ क्वेश्चंस और एग्जामिनेशन पेपर्स, प्रैक्टिकल पेपर्स, वो सब चीज़ें भी हैं। तो वो भी अगर कोई ऐसा कोई रिसोर्स बैंक है आपके किसी लिंक का, और मैंने अभी हमारी एकेडमिक्स कोऑर्डिनेटर का ईमेल एड्रेस भी इस पे शेयर कर दिया है, तो उधर उस पे भी जिस भी आपके स्कूल को चाहिए हो कोई भी इंफॉर्मेशन, वो उस पे ईमेल करें एंड दे विल गेट बैक द रिसोर्सेज। Third thing is the most schools which have used this book very comprehensively or have used it more successfully, what they have done is कि ये थोड़ा सा challenge है, and I don't know how आप इसको किस तरह कर सकते, that they have 6 periods of science per week, उसको वो 4 theory के लिए रखते और 2 practical के लिए रखते, and very correctly pointed out by some of your teachers that working scientifically and STEM, they both are part of the practical side of the book, and it has been embedded in the book so that teachers usko thoda seriously le, because in practical science ko traditionally, I'm not saying IUI does that, but usually schools take practical science मतलब उसको थोड़ा हम बैक पे रखते हैं और उसको, तो इस वजह से इन्होंने किताब में इम्बेड किया है इसको। तो हम थोड़ा आपको यही सजेस्ट करेंगे कि इसका जो थोड़ा लेंदी का है, दैट अगर आपकी जो कोर साइंस टीम है इस्लामाबाद में, वो उसके साथ हम बैठ जाए और उसके साथ हम एक वर्किंग ग्रुप बना दें अपनी एकेडमिक्स टीम का, एंड देन और अगर आप लोगों का कोई लेसन प्लान फॉर्मेट है जो कि चलता है मतलब ऑल ओवर IUI सिस्टम, वो भी अगर आप हमसे शेयर कर दें तो उसमें हम आपको एक किसी चैप्टर के सैंपल टीचर लेसन प्लान्स बनाकर दे दें एक चैप्टर के, और बाकी फिर आपकी जो साइंस कोर टीम है वो बाकियों के बना लें। No voice, sir, Kashif. I cannot hear you. I think you're on mute. sorry. जी ये जी साथ जी। सॉरी देयर वाज दिस हमारे ये एक और मीटिंग भी चल रही थी तो उसके लिए एनीवेज Umair, you know the what you said in the beginning is, you know, something which we wanted, we had a shared you know क्या कहना चाहिए concern on it, that we wanted to have a science which could ignite thinking rather than a, you know, a typical traditional way of teaching scientific skills. So इसीलिए हमने ये books adopt की थी, तो उसमें तो there is no disagreement. Now coming to the area, so books के ऊपर आपने देखा हमारे लोगों में से भी किसी की कोई objection as such on the book नहीं है कि बुक बुरी है, लिहाजा लेट्स कीप इट असाइड एंड फोकस ऑन व्हाट द इशू इज। अगर हम बहुत जनरलाइज करेंगे तो इशू को हम रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे। एंड नाउ सिंस वी आर यूजिंग इट फॉर द लास्ट 2 years, और मैं आपने देखा ही होगा कि पीपल हैव गिवन वेरी प्रैग्मेटिक फीडबैक। तो वन थिंग इज फॉर श्योर कि एक तो बुक लेंदी है, वो जाहिर है हमारा जो
पीरियड का कहना चाहिए एलोकेशन है, और पाकिस्तान में इससे ज़्यादा टाइम कोई भी नहीं देता साइंस को 6, 7, 8 में, तो वो हम दे रहे हैं स्टैंडर्ड टाइम। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स लेंथी। उसमें जाहिर है वन रीज़न इज कि हमारे जो बच्चे होते हैं उनका कॉम्प्रीहेंशन लेवल, दूसरा ये है कि यस इट्स बियॉन्ड देयर कॉम्प्रीहेंशन लेवल ऑल्सो। अब इन दोनों चीज़ों को हमने एड्रेस करना है। तो मेरा ख्याल है 2-3 सजेशन जो आपने भी बात की है, दैट इज ऑल्सो क्वाइट अ क्रेडिबल पॉइंट टू बी कंसिडर्ड। लेकिन उसमें जैसे एक तो मेरा ख्याल है टीचर ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है, और उसमें आई थिंक दैट्स बीन अ वीक पॉइंट ऑन आवर एंड योर एंड ऑल्सो, कि हम इसको एड्रेस नहीं कर पाए। वी नीड टू हैव मोर कॉम्प्रिहेंसिव टीचर ट्रेनिंग सेशंस नाउ फॉर ऑल द टीचर्स अक्रॉस पाकिस्तान, सारे स्कूल के लिए। तो एक तो प्लीज आप अपने एंड पे इसको मार्क कीजिए इन योर कैलेंडर, और वी नीड टू, आई थिंक इसको तो वी शुड एड्रेस एट द अर्लीस्ट। और जो द नेक्स्ट पॉइंट इज, मुझे बाकी लोग प्लीज इसमें लेट मी नो थ्रू थ्रू योर रिस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स, कि ये जो है टू हैव सम टॉपिक्स allocated and dedicated as practicals, और उसमें क्लियरली जैसे स्कीम ऑफ वर्क की बात हो रही है, उसमें ये मेंशन कर दिया जाए कि ये जो एरियाज हैं या ये जो टॉपिक्स हैं, इनको जो जो फाइनल असेसमेंट है उससे एक्सक्लूड कर दिया जाए। वी ऑल नो कि पाकिस्तान में, मेरा ख्याल है इट्स नॉट अ सीक्रेट, एवरीबडी नोज कि हमारा जो टीचर्स का लेवल होता है वो क्या होता है। सो वी शुड नॉट बी मेकिंग एनी अजम्पशंस, फॉल्स अजम्पशंस कि नहीं टीचर की कॉम्प्रीहेंशन सिर्फ बेहतर कर लेंगे। सो आई थिंक वी नीड टू वर्क ऑन ऑल 3 एरियाज। वन, दैट वी गिव देम ट्रेनिंग। टू, दैट वी वर्क समथिंग more systematically into organizing and breaking down these topics in a more comprehension, जिसमें यानी टीचर की कॉम्प्रीहेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कुछ टॉपिक्स तो हम एक्सक्लूड ही कर दें जो कि ज्यादा हायर लेवल ऑफ कॉम्प्रीहेंशन पर लेके जा रहे हैं। मतलब साइंस पढ़ाने में ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि उस्ताद के पास और बच्चे के पास इतना वक्त हो कि वो ऑब्जर्वेशन करे, वो थिंकिंग करे। वो ये ना हो कि करवाना तो हम थिंकिंग चाह रहे हैं, बट वी आस्क सो मेनी क्वेश्चंस टू देम कि एंड ऑफ द डे पता चले वो बेचारा इज बम्बार्डेड विद लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड जैसे उमैर कह रहे हैं कि वी वांट टू टेक देम बियॉन्ड इंफॉर्मेशन टू अ वर्ल्ड ऑफ थिंकिंग, तो उस थिंकिंग का टाइम ही ना मिले। तो वो एक हम और चीज, May I suggest that for this, in order to do this, can we make a science working group? Yeah, that's what I'm coming to now. तो एग्जैक्टली ऐसे है सर, कि जी आई ऑल्सो वांट कि हम ना 6, 7 और 8 की एक कॉन्टिन्यूएशन पर ब्रैकेट बना लें, इसमें कुछ टॉपिक्स हम 6 में करा रहे हैं, कुछ हम 7 में ले जाएं, कुछ 8 में ले जाएं, सो दैट दे टच एवरीथिंग, एवरी कॉन्सेप्ट टिल रीचिंग। जी अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे चूंकि इसको कंक्लूड करना है फॉर द नेक्स्ट टॉपिक ऑल्सो, हमारे पास वक्त भी कम है। तो एक जी बिल्कुल आपकी राय भी बिल्कुल ठीक है। इसमें ये जो उमैर कह रहे हैं, मेरा ख्याल है इट्स अ मोर प्रैग्मेटिक अप्रोच। आप लोग सारे जो है मुझे गिव मी, हमारे पास साइंस की जो पहले कमेटी है, मेरा ख्याल है उनमें से मेंबर्स भी नहीं बैठे हुए, सो आई एम नॉट हैप्पी अबाउट इट। आई आस्क देम ये स्कूल्स को कि व्हाई हैव दे नॉट ज्वाइंड अस, और अगर ज्वाइन किया हुआ है तो वो अपनी राय क्यों नहीं दे रहे। तो आई वुड रिक्वेस्ट आप में से जो लोग जिनका, जैसे सना का आई हैव सीन इट वाज अ वेरी डीप एनालिसिस। इसी तरह मीरपुर से हमारे साथ जो बैठी हैं मिस आयशा इमरान, उनकी अच्छी वो है। और आप में से जो भी जिनका अपना साइंस सब्जेक्ट है या जिनके टीचर जरा साइंस में बेहतर हैं, गिव मी मे बी 6 नेम्स, और हम इनको जो है ना लेट्स मेक ये साइंस वर्किंग ग्रुप जैसे उमैर सजेस्ट कर रहे हैं। तो हम इसको अच्छा बाय द वे एक और बड़ी अच्छी ये आई एम जस्ट पुटिंग इट अप टू द फोरम, आप लोग इस पर राय दे दीजिएगा कि ये भी तजवीज आई थी कि हम जो 6 की बुक है इसको ब्रेक कर लिया जाए। आई डोंट नो हाउ वर्केबल इट इज, आप साइंस के लोग जो हैं वो बेहतर बता सकते हैं कि इसका कुछ हिस्सा ग्रेड 6 में पढ़ाया जाए, 7 में पढ़ाया जाए। उस सूरत में हम वो जो स्टेम के एरियाज हैं उसको भी कवर करें, और एक फ्लेक्सिबिलिटी हो बच्चों के पास, प्रैक्टिकल्स हो। तो दैट वाज आल्सो अ पॉइंट। चलें अच्छा, मारवी जो है वो आई एम हैप्पी शी इज आल्सो ज्वाइंड अस। जी अगर आप बात करना चाहती हैं मिसेस मुसद्दिक, यू हैव टू मेक इट वेरी क्विक, और फिर राशिद साहब आपको भी लेते हैं, बस 2 मिनट्स में आपने बात पूरी करनी है आप दोनों ने। जी एक्चुअली जो हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है, मुझे ये लगता है कि ये बुक जो है वो टीचर सेंटर्ड से ज़्यादा स्टूडेंट सेंटर्ड है।
इसको अगर जी स्टूडेंट सेंटर्ड की तरफ करवाया जाए तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, और इसका जो है वो मैंने इस साल पूरा इम्प्लीमेंट पिछला जो टर्म करवाया है, और इस सही कम्प्लीटली स्टूडेंट सेंटर्ड पे इसको करवाया गया है और बहुत इफेक्टिव रहा है माशाल्लाह। तो मुझे नहीं पता, खैर मेरी कफायत में आई डोंट नो किसी से मुलाकात हुई थी कराची में, एजुकेशन डेट था माइक्रोसॉफ्ट का उस पे, तो उनसे उन्होंने मुझे ये बता मतलब डिस्कशन हुई थी साइंस की बुक को लेकर। तो जब मैंने ये बुक देखी तो मुझे इस कम्प्लीटली स्टूडेंट सेंटर्ड लगा, तो इस वजह से मुझे ये लगा कि टीचर्स को अब थोड़ा सा बैक स्टेप होना चाहिए, और इसकी जितनी बच्चों की ऑब्जर्वेशन आ रही है और वो जितना इस बुक से फायदा उठा सकते हैं वो स्टूडेंट सेंटर्ड में हो सकता है, टीचर सेंटर्ड में ये काम नहीं करती बुक। मुझे मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है जी कि सही मुझे पॉइंट ज्यादा टेकन। इफेक्टिव लगा। तो इसका मतलब है इसको हम टीचर ट्रेनिंग से एड्रेस करें इस इशू को, टीचर को वी मेक देम अंडरस्टैंड द एग्जैक्टली डिफरेंस बिटवीन। टीचर्स आपको ट्रेन करने पड़ेंगे कि वो कम से कम बोलें, वो क्वेश्चंस ज्यादा रेस करें कि बच्चा सोचने पे मजबूर हो। परफेक्ट परफेक्ट। जी राशिद साहब फरमाइए। सर मेरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम अस्सलाम, सर मेरा फरमाइए। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हमारे यहाँ जो मैंने सीखा है अभी बनीगाला कैंपस में और दूसरे कैंपसेस से जो मुझे पता लग रहा है, वो एक तो सबके पास मटेरियल नहीं है। सारे टीचर्स जो है वो चैट जीपीटी से और या गूगल से कर रहे हैं, जो करेक्ट आंसर नहीं आ रहे हैं। मैंने इस बुक के लिए वो कराची तक गया हूँ, वहां से मैं मटेरियल लेकर आया हूँ और फिर मैंने उनके क्वेश्चन आंसर यहाँ पर अपने आप ही करवाए ग्रेड 6-7 के अंदर। और ये बुक पढ़ाने के लिए एक साइंस का टीचर होना, और वो टीचर जो खुद हाई लेवल पे पढ़ाता है, यानी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 9th 10th को, तो ये उन एक्सपर्ट। टीचर को बुक्स पढ़ानी चाहिए। जो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो बहुत सारे टीचर वो ग्रेड 5 ग्रेड 6 के, या वो उनको पढ़ा रही साइंस, उस वो साइंस का स्टैंडर्ड कुछ और है, ये साइंस का स्टैंडर्ड कुछ और है, क्योंकि इसके अंदर Agreed, 9th ठीक 10th है। फर्स्ट ईयर को कवर किया गया। ये बुक अपने ओके। एतबार से तो बहुत अच्छी है। हाँ तो लेकिन मैं ये देखें कि ये अ, आपको सजेस्ट जी, करूंगा। ठीक है। हेलो, अच्छा जी जी राशिद ये साहब ठीक है। आप जो है ना इसके लिए टीचर्स पे, खासकर जो जो स्कूल है हमारे, उसमें टीचर्स को क्या इसका मटेरियल है और उनके जी पब्लिशर्स के पास है। मैं पब्लिशर से ही लेकर आया था, और काशिफ उसमें जो साहब क्वेश्चन एक्चुअली आंसर है उसके वो जो क्वेश्चन आंसर हमने का आपको सॉरी मैं एक थोड़ा ये इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। काशिफ साहब वो जी जो मैंने आपको यूएसबी में एक फोल्डर जी। एक्चुअली ला कर दिया था ना, इट्स एक्चुअली इट्स टू हैवी फॉर अस टू ईमेल इट, तो दैट नहीं इज वाई उमेर वो मैंने उसमें आपको जी प्लीज मैं आई जी मैं जी आपने पहले भी ये पॉइंट दोहराया, मैंने इसको आई टू रिस्पॉन्ड टू इट। एक तो वो अभी आप मेरे पास जब आए हुए थे कल क्या नाम है इनका, यार रिजवान कल मेरे पास यहाँ पे थे, तो परसों जी सॉरी। तो आई जी हैव जी जी शोड इन द फोल्डर। एक तो उसमें आपने वो जो दिया था फोल्डर वो करप्टेड फाइल्स थी, वैसे हमने ओह वो, और फिर उन्हें मैंने बताया है अभी आई हैव गाइडेड हिम, जी प्लीज जी पुट इट ऑन अ ड्राइव एंड सेंड अस द लिंक। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है तो सर। ये हमारी कल हो गई है बात है इस पर, परसों जो है इस पर वी हैव ऑलरेडी वर्कड ऑन इट। आई टोल्ड हिम कि उसी वक्त जब आप दे के गए थे तो जी जी द जी फोल्डर डिड नॉट वर्क दैट वेल, तो मैंने वो रिजवान को खोल के दिखाया भी था, ही कुड सी कि फाइल्स वर नॉट ओपनिंग। जी 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 सो वो हाँ, उसमें पे काशिफ असल साहब में कुछ मैं ये चीजें समझ रहा बहुत था ज्यादा शायद हैवी रिजवान दे है के तो वो गए थे। अपलोड नहीं हो पाती, तो उसका नहीं भी आप चलिए जो हम करें ना, आपसे डिस्कस करेंगे। जी 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 आप उसको ड्राइव जी पे अपनी, जी ड्राइव्स के ऊपर तो 10 GB भी हो जाता है ना, वो आपकी काफी हैवी फाइल है, जाहिर है वो जी मेल जी शेयर नहीं हो ये सकती। इशू है जी आप बिल्कुल। इसको, हमने भी अपना एकेडमिक रिसोर्स बैंक जो है वो ड्राइव पे बनाया हुआ है, एंड वी हैव शेयर्ड द लिंक विद द स्कूल्स। तो आप बेहतर उसको है। अपनी ड्राइव पे अपलोड करें। पहली बात तो ये कि आप ड्राइव पे अपलोड करेंगे, हमें लिंक दें, हम अपने एकेडमिक रिसोर्स बैंक में उसको शिफ्ट कर देंगे। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा काशिफ साहब एक लास्ट सवाल मेरी तरफ से ये था कि आप लोगों का कोई टेम्पलेट है उसका टीचर लेसन प्लान का? जी बिल्कुल, हमारे करिकुलम्स का पूरा फॉर्मेट है, और वो हम आपके जो भी इसमें एकेडमिक कोऑर्डिनेटर काम कर रहे हैं, असल में जी इसीलिए हमारी, ये जैसे हमारी एक दो हेड्स ने बात की है कि ग्रेड 1 2 3 4 5 में वो इतने डिटेल बने हुए होते हैं कि टीचर जी को जी सारी जी गाइडेंस एक डॉक्यूमेंट से मिल रही होती है। जी जी वी जी जी थॉट, हमने इसमें थोड़ा सा हमारे एंड पे भी समझे कि थोड़ा सा ये हुआ कि वी थॉट कि नहीं ब्रेकअप्स विल वर्क ओके, लेकिन जी अब जब टीचर को बुक ब्रेकअप्स टीचर गाइड और सारे रिसोर्सेज एक डिफरेंट उसमें अलग अलग पढ़े हुए हैं, वो सारे देखने पड़े हैं, तो जाहिर है वी नो दैट हाउ आवर टीचर्स अप्रोच सच रिसोर्सेज।
तो इसको भी हम Miss Mishra is also here if she would like to add something from our side. Please. जी प्लीज बोलिए। Miss Mishra, are you there? Would you like to add something, please? चले एनीवेज उमर, मेरा ख्याल है कि वी हैव ऑलमोस्ट रीच द एंड ऑफ इट। इसको चूंकि मुझे अगला पॉइंट भी एजेंडे को एड्रेस करना है और हमारे पास टाइम भी शॉर्ट है, तो यहाँ हमारे पास ये देखें, ये फिर बाकी भी हमारी अमरीन आरिफ भी यही कह रही हैं कि टीचर ट्रेनिंग इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड, सेकेंडली लेस चैप्टर्स फॉर फाइनल एग्जाम इज अ गुड सजेशन। सो आई थिंक वी आर ऑल रीचिंग टू दिस सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट आर रिक्वायर्ड टू टीच। ठीक है जी, training is definitely required, और ये agree with Marvi, keep STEM and in practical portion, and none of the questions should be given in theory out of it। तो मेरा ख्याल है जो आपने सजेशन दी है हम उसी पर इसको क्लोज कर रहे हैं कि हम एक साइंस का वर्किंग ग्रुप बना रहे हैं, और मैं प्रिंसिपल्स जो भी हमारे साथ बैठी हुई हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज गिव मी ऐसे टीचर्स जो 6, 7, 8 को साइंस की बुक पढ़ा रहे हैं, और जो आप लोगों को लगता है कि दे हैव यू नो डीपर यू नो इनसाइट ऑफ द बुक्स एज वेल एज ऑफ साइंस एज अ सब्जेक्ट, और जो हमें इसमें हेल्प आउट कर सकते हैं टू कम अप विद बेटर लेआउट ऑफ दीज बुक्स फॉर ग्रेड 6, 7 एंड 8। प्लीज उनके नाम सजेस्ट करें, वी पुट देम अप विद दी। अभी हम चैट बॉक्स जी मिस इमरान फरमाइए। जी चैट बॉक्स में आपको करते हैं टीचर्स के नेम जो आपने कहा है। I'll send you email on it. I'll send you email. आप फिर उसमें recommendations भिजवाएं, ठीक है? फाइन फाइन सर, काइंडली पेपर डिजाइनिंग के हवाले से भी अभी हमारी बात नहीं हुई है, जो एजेंडा में भी था कि वो जरूर आप डिस्कस करने के देयर शुड बी अ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड पेपर डिजाइनिंग फॉर दैट, कि हमें स्कीम एक होनी चाहिए इन बुक्स के लिए, so that every campus can work prepare the students according to that now। Actually, this is one of the reason. Otherwise, I would have, जैसे अभी हमें मानसेरा कैंपस ये पॉइंट आया हुआ है कि allows to exclude few topics. I cannot do that. हमें तो we are a system, तो हमें तो एक ये सिस्टम लेवल पे डिसीजन लेना है। I cannot allow every school कि आप अपनी मर्जी से जो भी टॉपिक्स आप एक्सक्लूड कर दें या इंक्लूड कर दें। तो टेकिंग अ सिस्टम अप्रोच, हमने सिस्टम के लेवल के ऊपर इसको जो है ना, एक वी हैव टू टेक अ मैक्रो लेवल डिसीजन कि हम क्या रख रहे हैं, क्या एक्सक्लूड कर रहे हैं, ताकि आपके सेकंड टर्म में जब हमारे सेंट्रलाइज एग्जाम होते हैं तो उस वक्त कोई कंफ्यूजन ना हो। तो इंशाल्लाह विल वर्क इट आउट। हाँ, जैसे मिसेस मलिक हैज आल्सो कम अप विद अ गुड आइडिया कि मॉडल पेपर्स कैन बी शेयर्ड विद कैंपसेस। ठीक है जी, तो मेरा ख्याल है इस टॉपिक को वी आर नाउ कंक्लूडिंग इट हियर, और मेरा ख्याल है किफायत मस्ट हैव टेकन देयर नोट्स। तो हमारा नेक्स्ट जो है वो we will be Kashif sir, forming we'll send you an email with the notes that we've taken. If there's anything, please you can add to it. And बस हमारी रिक्वेस्ट ये है कि हमने अपना ईमेल एड्रेस आपसे शेयर करा है। कभी कभी बड़े इंस्टीट्यूशंस में होता है कि कुछ कुछ रिसोर्सेज कभी कभी नहीं पहुंचती है, वो किसी कोई इंसान चेंज होता है तो वो, तो यू कैन ऑलवेज ईमेल इट टू अस एंड वी कैन सेंड इट टू यू, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। Inshallah, just one last thing, that I'm very, very happy to hear that such good work is being done, और इतना अच्छा feedback और इतना मतलब इतना envisioning और इतना enlightening मतलब feedback आया है मतलब all over पाकिस्तान से, IAUI के स्कूल से, तो very proud of all of you guys. Thank you जी, thank you very much Umair for joining us. लेट्स मूव फॉरवर्ड क्विकली। अच्छा, ऐसा है कि चूंकि साइंस की बुक्स का जो पेपर फॉर्मेट है, अब जाहिर है वो डिपेंडेंट होगा कि हम साइंस में डिसीजन क्या लेते हैं, तो आई एम क्लोजिंग इट हियर। इंशाल्लाह इस पर हम बाकी थ्रू ईमेल और ये जो हमारा साइंस वर्किंग ग्रुप होगा इसके जरिए इसको एड्रेस करते हैं। लेट्स गो बैक टू दी कुरानिक करिकुलम इस्लामिक स्टडीज का सिलेबस। अच्छा, उसमें मैं आप लोगों से पहले शेयर कर लेता हूँ, फिर आप अपने आइडिया शेयर कीजिए। दी suggestion which has come very strongly is कि हम कुरानिक करिकुलम और इस्लामिक स्टडीज के सेपरेट कर दें पेपर्स को। We deal them as two different papers,
तो इस पर आप लोग अपनी राय दीजिए। अभी चूंकि आपको पता है हम कंबाइन करके एक लेते हैं, तो लोगों का ख्याल है कि बच्चों के लिए भी बहुत बर्डन होता है। सो जी, इसके ऊपर आप जो, अब वो जफर साहब थे यहाँ पे, वो कुछ कहना चाह रहे थे उस वक्त। जफर अली साहब फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम सर काशिफ। जी वालेकुम अस्सलाम। कैफ हालुका सर काशिफ? अना बखैर व कैफ अंता? अल्हम्दुलिल्लाह ना बिखैर। तो सर मैंने 6-7 की मैं इस्लामियात पढ़ा रहा हूँ, और जी साथ में कंबाइन अंडरस्टैंड कुरानिक। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हर टीचर को जो वो सब्जेक्ट ले रहा है उस पर मुकम्मल अबूर हासिल होना चाहिए। और ओके इसी तरह जैसे मैं 6-7 की इस्लामियात पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे मुकम्मल इत्मीनान है, क्योंकि मैंने दर्स निज़ामी किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं उन्हें पढ़ा रहा हूँ, और हर चैप्टर का, हर सबक का मैं उन्हें कंसेप्ट देता हूँ कि इसके अंदर, क्योंकि इस्लामियात के अंदर आपको पता है आयात भी होती हैं, हदीस मुबारक भी होती हैं, और बाज़ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनकी डेफिनेशन है जो मसाइल में बदल जाते हैं। मिसाल के तौर पर तयम्मुम है अच्छा एक। जफर साहब, एक एक मुझे फेवर करें, ये बताएं आप कुरानिक भी पढ़ा रहे हैं साथ, कुरानिक करिकुलम? जी जी, वो मैं नहीं पढ़ा रहा, वो मुतबादल टीचर है, मैं इस्लामियात 6-7 अच्छा की पढ़ा रहा हूँ। अच्छा जी ठीक जी। है, सिर्फ ये बताएं आप कि जब ये पेपर इकट्ठा आता है तो उस हवाले से बच्चों की क्या राय है या पेरेंट्स की? पेरेंट्स की राय तो बेहतर ही होती है, क्योंकि अगर मैंने बताया ना कि अगर हम फुली तौर पे चैप्टर का कंसेप्ट देंगे बच्चों को, ठीक है, तो नहीं नहीं, बच्चे मुझे ये समझेंगे। बताएं। नहीं नहीं प्लीज, माय क्वेश्चन इज कि आप कुरानिक करिकुलम एक अलग टीचर पढ़ा रहे हैं और इस्लामिक स्टडीज अलग पढ़ा रहे हैं, पेपर तो इकट्ठा आता है ना आपका, तो जी उस जी, वक्त बच्चे परेशान नहीं होते कि सर हमने इसकी भी तैयारी करनी है, इसकी भी करनी है? परेशान तो होते हैं ना, जाहिर सी बात है, दो कंबाइन जब होता है तो बच्चे बच्चे परेशान होते हैं, क्योंकि अंडरस्टैंड कुरानिक, जाहिर सी बात है, इसमें ज्यादातर आयात उस तरह की, वो जमीर बस इस ठीक तरह हो गया के वो होते हैं, आपका। उसमें ठीक प्रॉब्लम है होता है। ठीक है ठीक है, योर पॉइंट इज टेकन। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर माजिदा फरमाइए। सर मुझे लगता है कि मैंने जो इनका पढ़ा है ना, कुरान का करिकुलम वगैरह बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत डिटेल में है, एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। अगेन स्कीम ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड कि हमने, मुझे लगता है कि पेपर में देखिए इंग्लिश में, उर्दू में 4 रिक्वायरमेंट्स होती है, कॉम्प्रीहेंशन, लिसनिंग, स्पीकिंग, क्रिएटिव, तो हमारे सेक्शंस होते हैं। सो इस्लामियात, कुरान और जो इखलाकियात हैं, ये तीनों चीजें आर इंटरकनेक्टेड। अगर हम इनको इकट्ठा नहीं पढ़ाएंगे और इकट्ठा नहीं लेंगे तो बच्चे इनको 3 अलग चीजें समझेंगे। इस्लामियात में हम हिस्ट्री बता रहे हैं, कुरान में हम डे टू डे जो कुरान की चीजें हैं वो समझा रहे हैं, और इखलाकियात में उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। सो अगर पेपर में भी हम उसी तरह, जैसे इंग्लिश, उर्दू और साइंस का सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन 3 होता है, सी होता है, उसमें हम इन तीनों चीजों को साथ लेके चलें तो बच्चे इनको रिलेट कर सकेंगे एक दूसरे के साथ, कि जो हम कुरान में पढ़ते हैं वही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, वही इखलाकियात है, और वही इस्लामियात है। यानी पास्ट से हमने क्या सीखना है और फ्यूचर में हमने क्या करना है। द ओनली थिंग इज ठीक अ है, गुड स्कीम ऑफ वर्क अगेन, कि हम उसको पढ़ाएं कैसे, रिलेट करके एक दूसरे के साथ। परफेक्ट। जी मिस सिद्रा, अब आप ट्राई करें। ये लिख रही हैं, यस दे फील डिफिकल्टी एंड वी आर गेटिंग कंसर्न्स फ्रॉम पेरेंट्स रिगार्डिंग कंडक्टिंग पेपर सेपरेटली। ओके, अच्छा जी, इस पर प्लीज अपनी राय दें जी। जी मिस आयशा, आप कुछ कहना चाहती हैं इस्लामिक स्टडीज एंड कुरानिक करिकुलम के उसके ऊपर? Sir, can I raise one point? जी जी जी, प्लीज बताइए। Sir, जो that was your first question कि जी to conduct a paper, both papers on the same day. Same, we have many concerns from the parents that they are requesting again and again that try to conduct these two papers separately, because the course is this much that they have to revise it and they need time for that. ठीक है, पहली बात। दूसरी बात जहाँ पे we face the problem is that we allocated 2 periods for QC and 2 periods for Islamiyat. तो अगेन वही प्रॉब्लम आती है कि टू कंप्लीट द सिलेबस विद इन 2 पीरियड ईच ऑफ क्यूसी एंड इस्लामियात, देयर इज बिग प्रॉब्लम। लाइक अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे पहले 3 पीरियड्स 3 के हिसाब से होते हैं, जेन वी आर नॉट हैविंग दिस इस्लामियात बुक, आपको पता है 1-2 साल पहले वी आर नॉट हैविंग दिस इस्लाम, सो वी आर रनिंग विद ओनली क्यूसी। तो वहां पे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट बड़ा सॉलिड जा रहा था, बहुत इंटरेस्टिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट्स वर एनहांस्ड एंड उनके स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स भी बहुत ज्यादा थे।
लेकिन व्हेन वी इंट्रोड्यूस दिस इस्लामियात बुक, जब आपको पता है नेशनल करिकुलम के हिसाब से जब हमने ये इंट्रोड्यूस की थी इस्लामियात की बुक, तो हमें वो स्टडी पीरियड एलोकेशन 2-2 पे लेके जाने पड़े, 2 QC 2 इस्लामियात एंड whatever इस तरह we are divided. So within 2 period to complete this divided curriculum, ये प्रॉब्लम आती है कंप्लीशन में भी, और जब हम इसका पेपर कंडक्ट करते हैं कलेक्टिवली, तो ये हमें यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग इन आवर कैंपस एज पर आवर पेरेंट्स फीडबैक। ओके, अच्छा, लेकिन वो तो देखिए पीरियड्स वाला इशू मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ कि वो तो आपके इस्लामिक स्टडीज के अलग पीरियड है और कुरानिक करिकुलम के अलग है। जी जी दिस बिल्कुल। द क्वेश्चन ऑफ के इस्लामिक स्टडीज बताते खुद भी बहुत लेंदी है Yes, और yes. उसको कवर करना। Excuse me, जी Kashif साहब, can I say something? जी प्लीज प्लीज। जी, अब ये जो आप बात कर रहे हैं, दिस इज ट्रू। बच्चों को वाकई डिफिकल्टी ये आती है क्योंकि इसमें जो हमारा इस्लामियात, अरबिक एंड नाजरा, ये 3 थिंग्स आर इंक्लूडेड इन इट। और उसमें होता ये है कि बच्चे फिर जाहिर है जब उनको डिफिकल्टी आती है, और पेरेंट्स भी, अब उन्होंने जो हमने देखा है वो ये प्रैक्टिस हो गई है कि वो नाजरा तो 20 मार्क्स फुल ले लेते हैं उसमें, और जो अरेबिक है उसका कोई ऐसी हमारी स्पेसिफिक वेटेज नहीं है। लाइक समटाइम्स 10 मार्क्स, समटाइम्स 15 मार्क्स या 20 मार्क्स तक क्वेश्चन आते, तो अरेबिक का पोर्शन छोड़ देते, वो करते ही नहीं है। वो कोशिश करते हैं कि नाजरा और इस्लामियात के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसमें करके और वो पास हो जाते हैं। मतलब ओके इंटरेस्ट उनको नहीं रहती है, एक तरह का बर्डन उनको हाँ फील होता है उसके ऊपर, और हाँ वो हाँ दे गो फॉर दिस थिंग, वो फिर ये या अपना एक वो वे सो आउट बनाते हैं। तो आई इसके थिंक ऊपर आप कुछ सब ऐसी जरा इस वर्किंग पर होनी प्लीज, चाहिए कि इट्स अ वेरी एक स्पेसिफिक मार्क्स होने चाहिए इस चीज के, कि अगर या आप उसको डिवाइड करते हैं, लाइक 80 मार्क्स में से आप 40 फॉर इस्लामियात एंड 40 फॉर अरेबिक करें, और 20 मार्क्स इट्स ओके फॉर नाजरा। दिस इज, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रेड 6 and 7। हाँ असल में उसमें हमने किया तो हुआ है, ये मार्किंग की हुई है, लेकिन मुझे आपका ये जो पॉइंट है ना कि वो बच्चा जो है ना वो विल डेफिनेटली फाइंड इट इजी कि ठीक है मैं नाजरा में से और उसमें से अगर ले लेता हूँ और पास हो जाता हूँ तो दैट्स फाइन। मतलब अगर मैं अरेबिक को इतनी प्रायोरिटी नहीं भी देता तो इट विल वर्क फॉर मी। आई थिंक दैट इज द पॉइंट वेयर वी शुड स्ट्राइक कि हमारा तो यस एज ए सिस्टम भी कुरान जो है शुड बी सेंट्रल एंड अम्ब्रेला टू ऑल लर्निंग। तो अगर यस बच्चा उसी को उसको उसको फोकस नहीं कर रहा और स्कूल भी फोकस नहीं कर रहा, या टीचर के ज़हन में भी यह है कि ठीक है बाकियों में से इतने नंबर ले लेगा और ये इसको इस्लामिया ये जो कुरान के तर्जुमे वाला है वो नहीं भी कर वो पाता फिर तो हमारा, जी, जी स्पेशल फीचर फिर हमारा जो अरेबिक से रिलेटेड है वो इट गोज टुवर्ड्स फेलियर। ठीक हो गया, पॉइंट टेकन। जी समीना शाद आप फरमाइए। अनम्यूट कीजिए खुद को, आपने रेज हैंड किया हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम सुमैया रफीक है और मैं IIUI मर्दान कैंपस से बात कर रही हूँ। जी वेलकम अबोर्ड, फरमाइए। सर मेरा ये है कि पॉइंट है कि हमने जो है इस बात को मद्देनजर रखा बच्चों की मुश्किल को, तो हमने पेपर जो है वो पहले से ही मतलब हमने 40 मार्क्स का जो है अलग अलग रख दिया था। इस साल भी अभी जो हमारा फर्स्ट टर्म हुआ है तो उसमें भी हमने बच्चों से इस्लामियात का पेपर अलग से लिया है और कुरानिक का पेपर अलग से लिया है। तो इसमें ये हुआ है कि फिर बच्चों को काफी ज्यादा मौका मिल गया है कुरानिक के पेपर की तैयारी के लिए। तो उन्होंने जो उर्दू से अरबी में ट्रांसलेट करना होता है या इसी तरह जो अरबी की ट्रांसलेशन वगैरह है, ये सब हमने पेपर में इंक्लूड की। तो बच्चे ने माशाल्लाह काफी ज्यादा अच्छी जो है उन्होंने कारकर्दगी दिखाई है। अच्छा, मेरा जो एक पॉइंट है वो QC2 के हवाले से है कि अगर आप देखें तो QC1 में हमारी हर एक चैप्टर के स्पेशली जो B पार्ट है जब वो खत्म होता है तो उसके बाद हमारे पास एक एक्सरसाइज आ जाती है जिसमें हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से करेक्ट आंसर को बच्चों ने टिक करना होता है। तो इसी तरह अगर हमारा ये जो QC2 की बुक है उसमें भी अगर ये मश्क इंक्लूड कर दी जाए तो इससे ये होगा कि बच्चे थोड़ा सा जाग जाएंगे, क्योंकि वो फौरन से बुक को खत्म करने चैप्टर को खत्म करने के बाद वो बुक बंद करके रख देते हैं और फिर जाहिर सी बात है हम लोग रिटर्न काम की तरफ वर्कबुक में आ जाते हैं। तो जब वे इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं तो बच्चा थोड़ा जाग जाता है कि इसमें हमने जो है वो क्या करना है, क्योंकि हम जो असेसमेंट के लिए आखिर में उनसे सवालात वगैरह पूछते हैं तो वो हमें जवाब कर देते हैं, लेकिन वो बच्चे
जो जरा कतराते हैं और इस चीज से भागने की कोशिश करते हैं, तो वो अगर बुक में ये चीज होगी तो वो जरा अलर्ट होके बैठेंगे कि हाँ भाई टीचर हमसे भी किसी भी टाइम ये कोई एमसीक्यू वगैरह जो है ये पूछ सकती है। तो एक ये चीज है, इसको इंक्लूड अगर कर दिया जाए। बाय द वे ये मेरी वेरी गुड अपना पॉइंट टेकन जी। नेक्स्ट मेरी अपनी राय है ये। और दूसरा ये है कि जो ये जो लेसन्स हैं, नंबर्स ऑफ लेसन्स जो हैं, इसमें अगर आप क्योंकि मुझे तो लग रहा है, क्योंकि ये अभी जैसे अभी अब साइंस की भी हम सुन रहे थे, तो ये बहुत ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं, उनको भी टाइम देना है। लेकिन अगर कोई ऐसा वो किया जाए कि इसमें एक या तकरीबन 20 मिनट्स का या कुछ इस तरह का अगर एडिशन कर दी जाए तो बेहतर नहीं रहेगा, क्योंकि अभी सफर हो रहे हैं ना, इस्लामियात एडिशन कर बहुत दीजिए, ज्यादा है। सॉरी इस्लामियात भी बहुत ज्यादा है ना, उसके चैप्टर्स भी काफी ज्यादा हैं। ठीक है। और इसका कुरानिक का तो फिर ये है कि मतलब ये पूरे कुरान की मतलब माशाल्लाह से 70 से 80% जब हम QC2 पढ़ाते हैं तो ऑलमोस्ट बच्चे जो है वो उसमें काबिल हो जाते हैं इसको ट्रांसलेट करने के। तो ये है कि ये जरा ज्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए, और ज्यादा अगर इसमें ज्यादा अट्रैक्टिव तो ये ऑलरेडी है ही, लेकिन अगर मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर इसमें अगर हम थोड़ा सा और इसको टाइम दें और बच्चे इसको जरा और टाइम दे के करें तो ये बाकी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा इंशाल्लाह, आगे क्लासेस में भी और इन क्लासेस में भी। ओके अच्छा, ये ठीक हो गया। सो QC2 में एक तो आप कह रही हैं कि बुक के चैप्टर्स के एंड के ऊपर जो है ना वहाँ पे क्वेश्चंस होने चाहिए। आई थिंक आई एग्री विद दैट कि कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि बच्चे उससे जो है ना वो इंटरेक्ट करें विद द बुक, विद द टीचर एंड फॉर टीचर हेल्प ऑल्सो। प्राइमरीली हमारा ख्याल ये था कि हम इतना ज्यादा बर्डनाइज नहीं करें, और वो जो वर्कबुक है उसी के क्वेश्चन को वो एज ए क्वेश्चन आंसर वो उसको डील करें। तो एनीवेज इसको हम देख लेते हैं। अभी अच्छा तक हमें सर एक और बात है। जी बताइए। जी सर, मेरा एक पॉइंट दूसरा वो ये है कि यहाँ पर हमारे बच्चे जो हैं अक्सर वो कहते हैं कि हमें इंग्लिश में कुरानिक जो है वो अगर हमें मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारे स्कूल में O लेवल्स भी शुरू हो चुका है। तो चंद बच्चों ने, और मोस्टली बच्चों की ये जो चूंकि प्राइवेट स्कूल से आते हैं तो उनका ये होता है जिस तरह सिटी बीकन हाउस से या इस तरह, तो वो कहते हैं कि हमारी उर्दू वीक है और हम लोग जो है कुरानिक जो है वो उसमें लेना चाहते हैं, इंग्लिश में लेना चाहते हैं। तो हमारा तो अगर आपको याद हो तो इससे पहले कुरानिक इंग्लिश में ही थी, लेकिन वो काफी ज्यादा माशाल्लाह से लेंथी थी। अभी तो खैर काफी समराइज भी हो गई, लेकिन जो उर्दू की बुक्स है हमारे पास अभी, ये जो कुरानिक का हम कोर्स करवा रहे हैं बच्चों को, अगर ये ही हमें इंग्लिश वर्जन में मिल जाए तो मेरे ख्याल से हमारे बहुत सारे बच्चों के लिए आसानी हो जाएगी, इनकी बुक्स भी और इनकी गाइड बुक्स भी। जी QC की बुक्स तो इंग्लिश में अवेलेबल है वर्जन, और हमने आप लोगों को ऑप्शन दिया था कि जो स्कूल इसको रिटेन करना चाहते हैं इंग्लिश में उसको रिटेन कर लें। लेकिन वो एंड ऑफ द डे मतलब क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी आ गई तो हमने कहा फिर इस्लामियत उर्दू में, QC इंग्लिश में, तो वी और आई थिंक मेजॉरिटी स्कूल्स वर ऑफ द व्यू के नहीं, नॉर्मली इन लाइफ आल्सो दे आर मोस्टली कुरान को इसी तरह उर्दू में ही पढ़े होते हैं। तो वी वेंट बैक टू दिस डिसीजन। तो अब इस पे तो मेरा ख्याल है इट्स नॉट अ टाइम टू डिस्कस इट। मुझे लेट्स गो बैक टू दी सेम पॉइंट। आप लोग सिर्फ मुझे ये बताएं, ये अभी तक वी डोंट हैव एनी क्लैरिटी ऑन दिस, कि हमने QC और इस्लामियात का इस वक्त जो बच्चों को इकट्ठा पेपर आता है, आई एम टॉकिंग अबाउट इट, पढ़ाई के लिए उनके पीरियड एलोकेशन अलग है, बुक्स अलग हैं, लास्ट में जो पेपर बनता है वो चूंकि इकट्ठा होता है। तो जो मुझे इससे पहले फीडबैक आती रही है जो डिफरेंट कैंपसेस से, वो ये है कि जी उस वक्त पेरेंट्स द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स फील लॉट्स ऑफ बर्डन। ठीक है। तो उसके लिए द क्वेश्चन वाज जी प्लीज, नहीं अब प्लीज किसी और को देना चांस, वो अब लेट्स जी मिस मारवी बोलिए। जी डॉक्टर काशिफ, मेरा सिर्फ ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि देखें, हमारे पास अक्सर ऐसा भी रहा है कि हमारे पास इंग्लिश की 2 बुक्स होती थी, इंग्लिश की अलग होती थी, ग्रामर अलग होती थी, ICT की 2 बुक्स होती थी, उर्दू की 2 बुक्स सब भी चलती थी, सब चीजें, और ऐसा कुछ भी नहीं, हमारा पेपर एक सिंगल आता था और बच्चे उसको करते थे। अब जब इस्लामियात में भी हमारे पास शुरू से इस इस्लामिक स्टडी कुरानिक कैरिकुलम के नाम से होता था, और उसके बाद इस्लामिक स्टडीज, नाजरा, अरबी सब उसी में आता था, इंक्लूड होता था एक सिंगल सब्जेक्ट के तौर पे। जब ये अंडरस्टैंडिंग
कुरान की बुक आई तो ये इम्पैक्ट क्यों गया कि इट्स समथिंग डिफरेंट है या ये कोई अलग से चीज हमने नहीं लगाई है। हालांकि पेपर हमारा वही उसी तरह बन रहा था और एक ही मार्किंग मतलब 100 में ही सारा मैनेज हो रहा था। नहीं, तो ये इम्पैक्ट नहीं इम्पैक्ट गया। हमारा मैं गया क्यों? सॉरी मैं थोड़ा सा लेट मी क्लैरिफाई, क्योंकि मैंने इसको बड़ा डीपली देखा है और लोगों की जब भी राय आई है इसको, इसमें इम्पैक्ट ये नहीं गया, किसी को भी ये नहीं हुआ। असल में सिर्फ वजह ये हुई है कि because QC itself has a lengthy syllabus and Yes. Islamiyat also has a lengthy syllabus. तो वो जब बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं तो उस वक्त पेरेंट्स प्रॉबली और बच्चे जो मिलके वो फील करते हैं कि इट्स लॉट्स ऑफ प्रेपरेशन फॉर इट। क्योंकि अभी जो इस्लामियात की ग्रेड 6 की जब इस्लामिक स्टडीज आई ना, वो मेरा ख्याल अगर आपने देखी है तो जी वो जी वाकईतन एक अच्छा जी खासा जी अच्छा खासा है। lengthy- अच्छा जी, यहाँ देखें, हम इसको शॉट डाउन जैसे क्यूसी को हम शॉट डाउन नहीं कर सकते। इट्स ऐसे ही बहुत ही वर्थ लगता है ये। हम दोनों को नहीं कर हाँ जी, सकते शॉट डाउन। हाँ एग्जैक्टली हम नहीं कर सकते। तो अब क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जिस तरह हमारी अगर ग्रेड 8 को QC3 पढ़ने में इशू आ रहा है तो हम ऐसा करें कि QC1 और QC2 को हम 3 साल में डिवाइड कर दें, कि मतलब ये That बुक जो है 2 बुक्स को 3 साल में पढ़ाया जाए, QC3 ये अभी स्टॉप कर दी जाए। क्योंकि सही उसमें वो ऐसा। मजीद फी और ये सब चीजें आ जाती है तो वो काफी बच्चे के हिसाब से डिफिकल्ट हो जाता है। ये खुद मेरा आपके अपना बहुत से कैंपस तो ओपिनियन था। QC3 पढ़ा ही नहीं रहे होते ना, वो पहले ही सर हम QC3 में। पढ़ा रहे हैं ना बेसिकली। अच्छा, हम पढ़ा ठीक रहे है। हैं मेरा ख्याल है तो अगर आप QC3 को एग्जाम कर दें और QC2 को एक्सटेंड कर लें तो आई एग्री, लेकिन मैं QC2 को इनिशियली आपका आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे डर ये है कि अगर हम इसको ब्रेक डाउन करके QC8 में ले जाएंगे तो वो 8 नहीं में इसको सर, पढ़ाएंगे नहीं। मतलब इस लाइक नॉट इस तरह कि थोड़ा सा या तो हम उसको ऐसा नहीं हो सकता पॉसिबिलिटी कि हम इसको थोड़ा या तो अर्ली स्टार्ट कर लें, ग्रेड 5 से स्टार्ट कर लें, हम उसको इस तरह डिवाइड कर लें कि वो थोड़ा असल में बर्डनाइज अब ना हो QC। गवर्नमेंट ऑफ तो पाकिस्तान की पॉलिसी भी ये तो खैर वो आपको ज्यादा पता होगा इन चीजों का। पर मेरे नजदीक ये है कि दोनों ही बहुत वर्थ रखती हैं, हम इसको कर नहीं सकते। अगर हम इस तरफ जाते हैं कि हम सेपरेट पेपर पे जाते हैं तो क्या हम मार्किंग ऐड करेंगे? मतलब क्या उसकी मार्किंग अलग होगी, उसकी मार्किंग अलग होगी, कि वो अरे 100 जाहिर है फिर मार्क्स वो का अलग पेपर सेपरेट होगा, वो पेपर के अलग तौर पेपर पे। होगा 100 मार्क्स का। नहीं, 100 का ना बनाएं उसको, हम 50 का बना लें, 40 और का। एक मतलब ये कोई जरूरी तो नहीं है, कोई कसम नहीं खाई हुई अच्छा हमने 100 का सर, बनाना इस तरह जैसे वैसे ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है जिस तरह ओ लेवल्स के पेपर्स होते हैं कि पेपर 1 पेपर 2 होता है, इंग्लिश में भी ऐसे ही होते हैं, उर्दू में भी होते हैं, है। जी QC में भी जी ऐसा हो सकता है। कोई ऐसा इशू नहीं है, पेपर 1 पेपर 2 किया जा सकता है, हाँ। मार्किंग भी उसकी उसी तरह डिवाइड कर दी जा सकती है। पर मतलब मेरे ख्याल में बजाय इसके कि कोर्स को कट डाउन करने से बेहतर यही है कि कोर्स कंप्लीट पढ़ाया जाए, पेपर भले उसका कर दिया जाए कि पेपर 2 हिस्सों में ले लें, क्या फर्क पड़ता है इससे कि अगर बच्चे 2 दिन में ठीक है पेपर दे देगा। ठीक है ठीक है, सर योर एक पॉइंट इज बात टेकन। मिस मलिक जो है मैं ना, बेसिकली करूंगी कि कट डाउन ना किया जाए, ठीक है। पेपर भले ना डिवाइड कर दे। नहीं, कट डाउन की हम बात भी नहीं कर रहे। देखिए, इस वक्त कट डाउन की ना इस्लामिक स्टडीज में हम उसको कम कर सकते हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी है। और QC चूंकि हमारा अपना, दिस इज द कोर ऑफ आवर एंटायर सिस्टम ऑफ इस्लामिक इंटरनेशनल इस्लामिक स्टडी स्कूल्स, तो जाहिर है वी वुड नेवर गो फॉर कटिंग इट डाउन फर्दर। पहले ही हमको इतना बहुत ज्यादा वो नहीं कर रहे। अच्छा, जो ग्रेड 5 में लाने की आपने बात की है ना, तो वो भी अब गवर्नमेंट की पॉलिसी यही है कि 5 के बाद ही है तर्जुमातुल कुरान जो है। मैं इससे पहले कि मैं डॉक्टर माजिदा को सुनूं, मेरा ख्याल है मिसेस मलिक को एक दफा, कमल मलिक जो बात बता रही है ना, दैट इज इम्पोर्टेंट। वो अगर आप प्लीज थोड़ा बात कर लें तो फिर अस्सलाम उनको वालेकुम मिस। सर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। देखिए ग्रेड 6-7 में हम अपने बच्चों को SSC के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। मैं बार बार उसका हवाला इसलिए दे रही हूँ, आप माइंड में रखें कि तर्जुमतुल कुरान और इस्लामियात दोनों पढ़ाई जा रही हैं ग्रेड 9-10 के लेवल के ऊपर। तर्जुमतुल कुरान का पेपर वेटेड जो है वो है 9 मार्क्स और 11 मार्क्स एग्जैक्टली। बाकी सारा पोर्शन वो इस्लामियात से लिया गया है। तो पेपर वेटेज सेट होनी चाहिए, इंस्टेड कि हम ग्रेड 6-7 में अगर 2 पेपर्स पे शिफ्ट हो गए, हमारे बच्चे 9-10 में जाके वही लेवरेज मांगेंगे, वहां पे फेडरल बोर्ड अलाउ नहीं करता। वहां पे हमारे पास कंबाइंड 3 पीरियड्स होते हैं। इधर तो हमारे पास सेपरेट टाइम है बच्चों के पढ़ाने के लिए, QC भी और इस्लामियात भी, लेकिन वहाँ टाइम कंस्ट्रेंट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इन सब चीज़ों के साथ इस्लामियात में टाइम कंस्ट्रेंट होता है, और वहाँ पे ना तो हम सेपरेट पेपर ले सकते हैं। तो अगर बच्चे 6-7 में इस प्रैक्टिस पे आ गए कि उनका सेपरेट पेपर भी हो गया और वेटेज भी एडजस्ट हो गई,
बच्चे और रिलैक्स हो गए। इस्लामियात में जब वो तर्जुमतुल कुरान के ऊपर आएंगे वो भी कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड है, कॉम्प्रीहेंशन भी आ गए, फिर बच्चों को वहां पर प्रॉब्लम आएगा जहां पर टाइम कंस्ट्रेंट क्लास टीचर के पास भी होता है कि 3 पीरियड्स हैं उसके पास। अच्छा, आप सही कह रही हैं। मिस सिद्रा जो है ना, वो भी आपके इसी पॉइंट से रेलेवेंट एक बड़ा अच्छा पॉइंट कह रही हैं। वो कह रही हैं कि सेम टीचर इज टेकिंग ग्रेड 9 and 10th कोर्स, हाउएवर एट 6 and 7 लेवल टीचर्स आर डिफरेंट। और अक्सर ये होता है, क्यूसी को वो नहीं पढ़ा पाता दूसरा इस्लामियत वाला। सो वो कह रही है कि स्टूडेंट्स लेवल इज ऑल्सो डिफरेंट, तो उनका भी लेवल कॉम्प्रीहेंशन का भी वो कम है। तो हमें शायद प्रॉबेबली द पॉइंट इज कि इसको अगर हम सेपरेट कर दें। बाय एनीवेज दोनों के पॉइंट्स बड़े पावरफुल है। मुझे प्लीज बताएं व्हाट डिसीजन आर वी रीचिंग टू। आयशा इमरान अगर यहाँ पर हैं तो, क्योंकि उन्होंने इसको अगर आप प्लीज एक दफा इस पे कमेंट कर दें कि व्हाई वुड यू सजेस्ट कि हम इसके सेपरेट पेपर्स। जी बिल्कुल सर, आई वाज लिसनिंग द वैल्यूएबल सजेशंस फ्रॉम ऑल द कैंपसेस, और उसमें मेरा वही अभी भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वही है सर रिगार्डिंग द सिलेबस कि नॉर्मली यही होता है कि दोनों पेपर जब हमने रेडी करने हैं और बच्चों ने, अगर आप इसको प्रैक्टिकली खुद भी देखें ना सर, कि हमारी क्यूसी का भी ठीक ठाक हमारी प्रैक्टिस वो हैं टॉपिक्स हैं, और इस्लामियत का भी काफ़ी हमारा लेंथी पोर्शन होता है। और बच्चों ने तो बेशक असेस हम उनको एक ही पेपर में कर रहे हैं, लेकिन बच्चों की प्रिपरेशन उन्होंने तो करना ही है ना, उन्होंने तो दोनों ही सब्जेक्ट्स को एक दिन में प्रिपेयर करना होगा ना। तो इवन वी कैन गो फॉर दैट कि अगर हम 6 and 7 में सेपरेट कर रखें पेपर और 8 में हम कंबाइन कर लें कि 8 में जाके भी बच्चे 9th के लिए रेडी होना शुरू हो जाए, और बच्चे थोड़े से ग्रेड 8 के लेवल पे बच्चे थोड़ा सा लेवल भी अच्छा अप हो ठीक हो जाता है। गया, योर पॉइंट इज टेकन। एक पॉइंट बहुत अच्छा आया है, फिर मैं मिस वर्दा को सुनता हूँ और फिर हम इंशाल्लाह कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। ये हमारी गालिबन मुल्तान की हमारी प्रिंसिपल जो मिस जुमरत कह रही हैं कि सर बोथ आर इम्पॉर्टेंट। इफ वी टेक इस्लामियात पेपर की हम पॉलिसी ये बना लें कि वो सारा ऑब्जेक्टिव टाइप में ले लिया जाए, ये शॉर्ट क्वेश्चंस विदाउट हैविंग लॉन्ग क्वेश्चंस ना हो, तो बर्डन कम हो जाएगा। वैसे दिस कुड आल्सो बी, मेरा ख्याल है एक थोड़ा इनोवेटिव वे ऑफ कवरिंग बोथ। जी यस, लेकिन कि आप हम उसमें लॉन्ग क्वेश्चंस करवाएंगे नहीं, उनको हम एग्जाम करवाएंगे कर नहीं, देंगे। बस 2 साल अच्छा, के लिए ना करवाएं, 6-7 में ना करवाएं। आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। यस वी कैन गो फॉर दैट विद दैट एज चले वेल। मिस वर्दा आप बताइए और इस पर कमेंट भी कीजिए इस पॉइंट पर। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम अगर पेपर्स को सेपरेट कर लें तो इट वुड बी मच बेटर, क्योंकि यहाँ पे 9th-10th में हमारे पास मुताले कुरान है। तो जी अंडरस्टैंडिंग कुरान जो है ये वाहिद कोर्स सब्जेक्ट हमारा ऐसा था कि जब ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था तो हमारे स्टूडेंट्स दे वुड बी एबल टू डू वेरी वेल। हमारा फर्स्ट जो अटेम्प्ट था मुताले कुरान का, तो हमारे जो हाईएस्ट मार्क्स थे दैट वर 49 out of 50। तो मैं ये माशाल्लाह। चाहती हूँ कि जी अगर फोकस हमारा इस पे रहेगा एज अ सेपरेट सब्जेक्ट, तो जो बच्चे हैं वो ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकेंगे, क्योंकि QC2 के बाद उनके लिए सूरह बकरा को करना बहुत इजी हो जाता है। तो वहां पे हमें बहुत एक्स्ट्रा हमारे लिए एक बर्डन नहीं था ये। और सेकेंडली हमने मुताले कुरान और इस्लामियात दोनों के टीचर्स बिल्कुल सेपरेट रखे हुए हैं। दोनों ही ट्रेंड हैं, लेकिन उनका एक अलग अलग से लेके वो चल रहे हैं। तो फ्रॉम 6 ऑनवर्ड्स QC का टीचर अलग है जो कि मुताले कुरान भी पढ़ा रहे हैं, तो वो एक कनेक्टिविटी भी रहती है और बच्चों को बड़ा उनके साथ एडजस्ट हो जाते हैं, उसका इशू नहीं होता। लेकिन कंबाइंड पेपर होगा तो फोकस वुड बी मोर ऑन लेंथी क्वेश्चंस, तो ये पार्ट को वो स्किप कर जाएंगे कि बस पासिंग मार्क्स हो जाएं तो दैट वुड बी इनफ। तो वहां फिर नहीं, बच्चा आप मुझे सेकेंड ईयर तक। जी सॉरी सॉरी मुझे ये बताएं, आपके यहाँ केपी में मुतालिया कुरान का 50 मार्क्स से टोटली सेपरेट आता है पेपर? जी जी बिल्कुल सेपरेट आता है हमारा। हमारे मार्क्स जो है अच्छा दोज आर नाउ 600 एंड दैट गोज सेम विद ओके, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एज वेल। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। चलें, जी अब जरा प्लीज आप सब लोग इस पर्सपेक्टिव से सोचें। सादिया सईद कुछ कहना चाह रही थी, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैं सादिया मानसरा कैंपस से। सर मैं QC भी पढ़ा रही हूँ और इस्लामियात दोनों पढ़ा रही हूँ। ओके लास्ट ईयर ये था कि जब हम इस्लामियात में लॉन्ग क्वेश्चन लेके चलते थे तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था। तो इस साल हमने ये किया कि उनको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया और ज्यादा ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन पे हमने फोकस किया, तो उसमें काफी बेहतर रिजल्ट आया। तो ये जो सजेशन आई, अगर लॉन्ग क्वेश्चन ना किए जाएं, शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव हो और पेपर इकट्ठा ही होना चाहिए, क्योंकि ग्रेड 6 में ये होता है कि हर चैप्टर में QC में न्यू कॉन्सेप्ट होता है और बहुत डिफिकल्ट होता है। 5 से बच्चे आए होते हैं उनके लिए।
7th में आके तो वो यूज टू हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि क्यूसी क्या है। तो आई थिंक पेपर कंबाइन ही होना चाहिए और इस्लामियात में इस तरह कर लें कि हम शॉर्ट पे आ जाएं और ऑब्जेक्टिव पे आ जाएं। ओके, ठीक है, ये सजेशन इज टेकन। अच्छा, आपकी आइडियल पोजीशन है ना, आप दोनों सब्जेक्ट भी पढ़ा रही हैं और आप कंबाइंड पेपर का कह रही हैं। मेरा ख्याल है जहाँ पे टीचर मुख्तलिफ होता है और एंड पे जाके हम पेपर इकट्ठा करते हैं, तो दैट कुड बी ए शॉक फॉर द स्टूडेंट्स ऑल्सो, कि ये तो पढ़ाते भी अलग टीचर्स थे, और जो साल में असेसमेंट्स भी होती होंगी, टेस्ट भी होते होंगे, क्यूसी वाला अलग लेता होगा अपने अलग अंदाज में और इस्लामिक स्टडीज वाला अलग, और आखिर में जाके हम उसे कंबाइन करके एक पेपर दे दें। तो जरा प्लीज इस पर्सपेक्टिव से सोचिए। आई एम नॉट मेकिंग एनी डिसीजन, आई एम नॉट टेकिंग, आप लोगों ने डिसीजन लेना है। सो लेट्स लीव इट फॉर अ वाइल। आप लोग मैं ऑनेस्टली अभी तक किसी डिसीजन पे नहीं पहुंच पाया, क्योंकि आप लोग जो है इस वक्त इसको हम प्रिंसिपल्स ग्रुप में फर्दर डिस्कस करके वहां पे मैं आपको एक पोल शेयर कर लूंगा, तो आप उस पर वोटिंग कर दें, क्योंकि दोनों ही तरफ से बड़े Excuse me, पॉजिटिव। जी काशिफ साहब, जी मैंने अपना उसमें चैट बॉक्स में भी किया है। एक सजेशन हाँ। ये भी है, अगर ये फिजिबल हो, कि हम्म इस्लामियत के ऑलमोस्ट वही टॉपिक्स हैं जो हम ग्रेड 6 से पढ़ा रहे थे, जो ग्रेड 9th एंड 10th में भी बच्चे पढ़ते हैं। तो अगर जी हम जी इंस्टेड ऑफ कीपिंग एनी टेक्स्ट बुक फॉर ग्रेड 6 एंड 7 फॉर इस्लामियत, हम ग्रेड 9th और 10th के ही टॉपिक्स को उस तरह से डिवाइड करेंगे, वो 6, 7, 8 में डिवाइड हो जाए, और नहीं नहीं, उससे वो फिर नहीं ये कर होगा सकते। कि हमारे पास ये नहीं, इतना प्लीज लेंदी प्लीज, सब्जेक्ट भी नहीं होगा, और वही फिर बच्चों के लिए नो हाउ पहले हो जाएगी, और वो 9th में जाकर उसको रिपीट नहीं करेंगे। प्लीज रिमेंबर, आप ऐसा नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी है। देखें, ये छोटी एकेडमीज और इस तरह के लोग ऐसे काम करते हैं, हमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज को एडहेयर करना चाहिए, और एथिकली भी वो ठीक नहीं है और वैसे भी ठीक नहीं है। मैं तो इसके भी हक में नहीं होता, विच इज़ वेरी सैड थिंग, कि हम 9th में जो 8th में प्री 9th का हमने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया हुआ है। दिस इज ऑल्सो अगेंस्ट द एजुकेशनल प्रैक्टिसेस, बट अनफॉर्चुनेटली क्या करें, लिहाजा वो आई थिंक इज नॉट रियली प्रैक्टिकल एंड वर्केबल बात। फिर तो दूसरी सजेशन ठीक है कि जी जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको स्किप किया जाए, और ऑब्जेक्टिव हाँ, और ये ठीक है। आई थिंक शॉर्ट दिस, वाले हैं वो फिर ज्यादा यस विजिबल, इसी यस, के ऊपर मुझे ज्यादा मुझे आई ये थिंक कंक्रीट बात बेटर लग रही है। रिजल्ट हम अचीव कर सकते हैं इसमें। यस। लेकिन अच्छा, अरेबिक को मरियम, पूरा टाइम दिया जाए, क्यूसी ठीक है, को। मरियम जदून है हमारे साथ एबटाबाद से, उनकी बात सुनते हैं। आई थिंक दैट वुड एंड इस पे फिर सना की बात लेके हम विल कंक्लूड इट। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी इस्लामियात के बारे में बात करनी थी कि अगर हम इसमें यूनिवर्सिटी की तरफ से डिफाइन हो कि कौन से टॉपिक हमने ऑब्जेक्टिव के तौर पे लेके चलने हैं और कौन से हमने एक्सरसाइजेज फुली तौर पे करवानी है, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि जब आपकी तरफ से फाइनल टर्म में हमारे पास एग्जाम्स आते हैं, तो वो सबके लिए आसान हो जाएगा करना भी, क्योंकि फिर हमें ये ना हो कि लास्ट में आके हम उसमें से एक्सक्लूड करते रहें या कुछ इस तरह की चेंजेस करें। तो मेरा नहीं ख्याल में हम कि अगर ऐसे इस्लामियात में हम जी जी नहीं मरियम, हम एक्सक्लूड कुछ नहीं कर रहे। हम कह ये जी रहे जी हैं, क्योंकि इस्लामियात में से हम कर भी नहीं सकते, हम सिर्फ ये कह रहे हैं एग्जैक्टली उसमें जहां जी से भी जी क्वेश्चन लिए जाएं वो या सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप हो या शॉर्ट क्वेश्चन हो, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ही नहीं। ठीक ठीक है। है, ये बेटर रहेगा सर, क्योंकि इसको हाँ एक तो कंटेंट बहुत ज्यादा है और बहुत अच्छा है, बट डेफिनेटली हमारे पास पीरियड एजुकेशन के अकॉर्डिंग टाइम इतना नहीं है। तो मैं इसलिए चाह रही थी कि अगर हम इसको ऑब्जेक्टिव बेस्ड पे लेके चले, शॉर्ट क्वेश्चंस पे तौर पे लेके चले, तो वो ज्यादा इजी भी रहेगा और इफेक्टिव भी रहेगा बच्चों के लिए। थैंक यू मिसेज जदून। जी मिस सना, आप फाइनल बात कीजिए और फिर हम इसको। सर मैं दोनों हवाले से बात करूंगी। इसमें ये है कि मेनी ऑफ द पेरेंट्स सजेस्टेड कि पेपर को सेपरेट होना चाहिए। इसमें ये होगा कि हमारे लर्निंग इस्लामियात और क्यूसी के पेपर को सेपरेट डेज में होना चाहिए। उसमें ये होगा कि हमारे क्यूसी के लर्निंग आउटकम्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब अगर मैं इस्लामियात की 6, 7 की जो हमारी बुक है उसके हवाले से मैं अगर बात करूं, तो देखिए अगर फेडरल बोर्ड की प्रैक्टिस को भी अगर आप चेक करें, तो जो तर्जुमातुल कुरान की बुक उन्होंने इंट्रोड्यूस की है, ठीक है, उसमें एक एग्जाम्पल कोट करूंगी आप सबके लिए कि सूरह मरियम का अगर आप यूनिट देखें और आप यूनिट की एक्सरसाइज पे जाएं, देखिए उसमें उन्होंने शॉर्ट क्वेश्चन एंड एमसीक्यूज भी दिए हैं, और बकायदा उन्होंने जिन वर्सेस को पेपर में शामिल करना है, यानी कि दी गई आयात का बामुहावरा तर्जुमा लिखें, उन्होंने वो वर्सेस मेंशन भी किए। और स्कीम ऑफ स्टडी जो वो हमें आई थी गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें भी बकायदा वो वर्सेस दी हुई है जिनका तर्जुमा पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन उन्होंने लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे मैनेज किया है कि तफसीली सूरह मरियम का एक मुफस्सल मजमून लिखी है, ठीक है।
इसी तरह हम अपनी इस्लामियात की 6-7 बुक में ये कर सकते हैं कि हम शॉर्ट और एमसीक्यूज को करवाएं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चंस को मर्ज करके समरी की फॉर्म में करवाएं तमाम यूनिट्स के। तो हमारा वर्कलोड और बच्चों के ऊपर भी लोड कम हो जाता है। ठीक है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन इंस्टेड के हम स्किप करें। जब बच्चे एमसीक्यूज करेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे और टीचर उनको कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी, तो वो इजी एक समरी की फॉर्म में एक चैप्टर लिख सकते हैं। तो हम लॉन्ग क्वेश्चन को इस तरह स्किप करें कि वो समरी की फॉर्म में आए। और ये फेडरल बोर्ड की भी देखें, उन्होंने जब तर्जुमातुल कुरान की बुक पहली दफा इंट्रोड्यूस की तो उन्होंने भी इस चीज को ही फॉलो किया उस बुक में। सर अच्छा, मेरे ये अब दोनों ये पॉइंट। what I can see now is, और सईदा सिद्रा भी यही फरमा रही हैं कि मोस्ट ऑफ यू आर नाउ कमिंग विद द पॉइंट कि हम इसको सेपरेट कर दें और इसके सेपरेट पेपर्स हों, और इवन सेपरेट पेपर्स हों तो फिर अलग डेज पे भी हों। यस, तो दैट्स व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग। जी, तो जरा इस दोनों में से एक पेपर पे बच्चे फोकस ज्यादा करते हैं अगर हम कंबाइन लेते हैं, या तो किसी का बहुत अच्छा हो जाता है या सामने का बहुत अच्छा। सेपरेट डेज पे लेंगे तो इंशाल्लाह दोनों पे प्रोग्रेस होंगी। ठीक है, ठीक हो गया जी। आई थिंक वो ये राय आनी शुरू हो गई चैट बॉक्स में। मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग यस, तो ठीक है। लेट अस, अच्छा, इसमें कोई लोग आपके वॉलंटियर कर सकते हैं इस्लामिक स्टडीज में भी। आई डोंट वांट कि हम इस तरह हैफेज़र्ड डिसीजन लें। दिस डिसीजन विल मेक अ लॉन्ग टाइम इम्पैक्ट। हम एक इस्लामिक स्कूल का वी टेक अ क्रेडिट एंड वी टेक अ प्लेयर एंड ऑनर कि वी आर एन इस्लामिक स्कूल, और हमने कुरान तर्जुमा पाकिस्तान में सबसे पहले शुरू किया था। तो फिर हमारे बच्चे भी दे शुड बी बेटर ऑन इट। तो आप लोग इसको सोचिए प्रैग्मेटिकली, और लेट्स फॉर्म, आप में से जो लोग जरा इंटरेस्टेड हैं इसमें, हम एक 5-6 ग्रुप का, मेरा ख्याल है, लोगों का इसका इस्लामिक स्टडीज का भी वर्किंग ग्रुप बना लेते हैं। उसमें थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं फॉर अ वीक और सो, नॉट अ वेरी लेंथी टाइम फॉर इट। और फिर हम इंशाल्लाह बाय फरवरी एंड जो है इस पे सॉरी जनवरी एंड इस पे डिसीजन ले लेंगे, ठीक है, ताकि इस साल के आपके जो सेंट्रलाइज एग्जाम्स हैं उससे पहले पहले डिसीजन हुआ हो। जी डॉक्टर माजिदा फरमाइए फाइनल वर्ड्स। सर मैं ये कह रही थी कि इनिशियली जो इस्लामियात थी सर, वो तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इस्लामियात का एक बुक चल रही है, लेकिन अब ये कुरान की जो बुक्स आई हैं दे आर न्यू, यू नो, अभी कुछ ईयर से 1-2 सालों से कुरान के ऊपर इतनी रिसर्च हुई है और उन्होंने प्रॉपर बुक्स कर दी हैं और गवर्नमेंट में भी आ गई है। सो व्हाई नॉट के हम, क्योंकि इस्लामियात पहले खाली इस्लामियात थी तो उसमें कुरान की सूरतें भी थी, उसमें मेन थीम्स भी थे, उनमें आयात भी थी, और उसके साथ फिर गज़वा और सहाबा और मतलब जो भी हिस्ट्री है इस्लामियात की वो थी। लेकिन चूंकि अब कुरान प्रॉपर एक बुक की सूरत में आ गया है और उसमें हम प्रॉपर वो अरबिक भी करा रहे हैं, तो व्हाई नॉट कि हम इस्लामियात के टॉपिक्स, अगर हम कुरान की सूरा करा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर गज़वा बदर है या कोई ऐसी सूरत जो उस गज़वा के टाइम पे नाजिल हुई, तो वो सूरत हम इस्लामियात में कराने के बजाय उस सूरत का जब हम मेन थीम करा रहे हैं तो वो गज़वा की डिटेल जो है हम उस सूरत में ऐड कर सकते हैं। यानी हम इस्लामियात के करिकुलम को जम कर सकते हैं कुरान के करिकुलम में, बिकॉज इस्लामियात बेसिकली एक्सट्रैक्ट ऑफ कुरान ही है, isn't it? वो आपकी बात सही है। असल में वी वर वेरी क्लोज टू डू दिस। हमने इस पे बुक्स बनवा भी ली थी इल्म फाउंडेशन से, लेकिन फिर हुआ ये कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने चूंकि एक स्कोप एंड सीक्वेंस बना दिया हुआ है, उसको हम उससे डिविएट नहीं कर सकते। वी हैव टू फॉलो इट, इट्स पार्ट ऑफ नेशनल करिकुलम। तो जो हमारा यूसी का करिकुलम है वो चूंकि अलग से डिजाइन हुआ है, उसकी एक अपनी फिलॉसफी है, वो इजी से कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहा है। तो बहरहाल वो आई अंडरस्टैंड एज एन एजुकेशनिस्ट योर पॉइंट इज वेरी वैलिड, बट आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड माई पोजीशन एज अ पॉलिसी मेकर एंड डिसीजन, और वो सारा चूंकि हमने इन सारों को कंसिडर करना है, गवर्नमेंट पॉलिसी को भी और अपनी स्पेशलिटी को भी। तो बहरहाल मुझे लग रहा है इंशाल्लाह विद ऑल ऑफ यू ऑन बोर्ड एंड दिस वंडरफुल फैमिली ऑफ आई स्कूल्स एजुकेशनिस्ट, वी विल डेफिनेटली हैव अ बेटर सोल्यूशन, और हम इंशाल्लाह अपने स्टूडेंट्स को और अपने स्कूल्स को बेहतर सर्व कर पाएंगे। आप सबकी फीडबैक का बहुत शुक्रिया, और इस दुआ के साथ कि इंशाल्लाह हम मज़ीद बेहतर तरीके से अपने पेरेंट्स को, अपने सिस्टम को वो सर्व कर सकें। आप सबके वक्त का भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, आप सबकी राय का बहुत शुक्रिया। तो एंड प्लीज दिस इज हाउ वी शुड रिमेन कनेक्टेड फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर स्टूडेंट, स्कूल्स एंड दिस सोसाइटी। जज़ाकल्लाह। और जाते जाते मैं आप सबको ये बताता चलूँ, आई शुड बी थैंकिंग यू ऑल, स्पेशली
मिस सिद्रा, मिस कंवल, मेरा ख्याल है, अब मुझे पता नहीं कौन कौन से स्कूल थे जिन्होंने ये जूनियर चिनार ट्रस्ट की उसमें हिस्सा लिया था, लेकिन आप लोग वहां पे नहीं थे उस दिन, तो वो अवार्ड उन्होंने मुझे दे दिया। मैंने उनसे कहा जी दिस अवार्ड गोज दी टू माय स्कूल्स, वो पांचों कैंपस, तो वो कौन कौन से कैंपस थे, लेट्स एक्नॉलेज देम। मुझे अगर प्लीज, आई एम सो सॉरी, मुझे ये तो याद है, ये 3 कैंपस याद है, बाकी आप में से किस किस ने हिस्सा लिया था? सो द अवार्ड एक्चुअली गोज टू यू, ठीक है जी। पीडब्ल्यूडी तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, पीडब्ल्यूडी गुलरेज को उन्होंने वहां पे एक्नॉलेज भी किया, आप में से कोई था नहीं, और आपकी शील्ड जो है वो हमने किसी और को दिलवा दी। बहरहाल दैट द क्रेडिट गोज टू यू एज वेल। IIUI बनीगला कैंपस आपने भी पार्टिसिपेट किया था? अच्छा, माशाल्लाह, ठीक हो गया। तो जज़ाकल्लाह खैरा, आप सबका एक दफ़ा फिर शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें इल्म की बेहतर खिदमत की तौफीक अता फरमाए, और ख़ास तौर पर QC के इस कोर्स में, चूँकि मेरा बहुत ज़ाती, मुझे यकीन है मेरी तरह आप सबका भी बहुत पर्सनल इंटरेस्ट होगा इसमें, कि हमारे बच्चे अभी इस उम्र में कुरान को अच्छा सीख लें, उसके साथ जुड़ जाएं, और इंशाल्लाह ना सिर्फ अपनी ज़िंदगियों को बल्कि इस उम्मत की ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करें। तो अल्लाह ताला हमें इसमें मज़ीद इस्तकामत अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफिज़।